Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए मोदी जी का नाम तो करना ही पड़ेगा। At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessarily I have to talk about the in 2007 everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest for a while. Yeah. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे. I'll be happy. You came here, I'm happy, I'm thankful to you. Thank God for this. It's okay. Your things are, आपके ideas हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए. 3-4 questions I will let you. But Modi sahab, Modi sahab. देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ. आप उसको कोशिश करें. Freedom and power bring responsibility. That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we might fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity.
The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? Peace has been said to be indivisible, so is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. 100 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है। ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है। ये 125 साल की बुढ़िया बेंगलोर की जिंदगी बदल सकती है, कर्नाटक की जिंदगी बदल सकती है, हिंदुस्तान की जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। To the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. मान लो मेरे कांग्रेस के मित्रों को मेरी ये 125 वाली सच्चाई पसंद नहीं आती है, उनको बुढ़िया कांग्रेस वाला मामला अच्छा नहीं लगता है, तो चलो भाई हम कहेंगे अब कांग्रेस पार्टी बुढ़िया कांग्रेस नहीं है। कैसे वो जवान हो जाएंगे क्या? उनकी 700 साल की उम्र कम हो जाएगी क्या? तो आज से हम ये कहना बंद करेंगे कि भाई कांग्रेस 125 साल की बुढ़िया नहीं है, कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। तू सोच 50 साल बाद ये मिथ बन जाएगा, मिथ मतलब ये रियलिटी बन जाएगी। लोग सच में बोलेंगे कि हाँ सावरकर जी के साथ ऐसा हुआ था। सावरकर बाल तुझको ऐसे तो रिलीजन बनता है। प्रॉब्लम है कि ये व्हाट्सएप से चल के अभी किताबों में पहुंच गई। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुम, मगर कोई फॉरवर्ड क्या तुमने पढ़ा है मेरी नजर से पढ़ा है, यूएन ने मोदी जी को बेस्ट वन कहा है। दिख रहा है ना विनोद, जिनको 2014 में आजादी मिली है वो भी 75 साल बना। इस पॉडकास्ट का अहमियत मुझे आज समझ में आया। कैसे भी 500-600 साल बाद होगा हड़प्पा की तरह, मतलब सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा तो ये पॉडकास्ट निकलेगा तो लोगों को समझ आएगा कि ये मोदी इरा में प्रॉमिसेस क्या हुआ करते थे, उनके साथ हुआ क्या, क्रॉनिकल होगा इसमें। ये क्योंकि कोई न्यूज चैनल वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आर्काइवल है ना, हम लोगों का आर्काइवल वैल्यू बहुत है इस पॉडकास्ट। पर मोदी जी को मन तो बहुत करता होगा यार ऐसा कुछ करने का, कि ऐसा मतलब बहुत सालों बाद कुछ ऐसा मैंने देश को एक वादा किया। मोदी जी को फर्स्ट एवर बनने का मूड है बहुत। तो मोदी जी वही कर रहे हैं ना। सेंट्रल विस्टा क्या करेगा कि सेंट्रल विस्टा में मोदी जी क्लेम कर पाएंगे कि मैं पहला स्पीच दिया सेंट्रल विस्टा का, तो और वो करेंगे भी वही, वो बोलेंगे सुबह के 8 बजे करेंगे। हिंदुस्तानी कल्चर में हम रात को और एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी आएगा कि इंडियन कल्चर में हम रात को कुछ नहीं मनाते हैं, हम कोई नया चीज का उद्घाटन मिडनाइट रेव पार्टीज एंड एवरीथिंग इज सो वेरी वेस्टर्न। उससे मुझे एक चीज याद है, तुम लोग अभी एक बहुत फेमस एक छोटा सा क्लिप चल रहा है बहुत फेमस, स्कूल इन पंजाब, देखा है क्या तुमने? एक क्लासरूम है पंजाब के किसी स्कूल में, उसमें ऐसे क्लासरूम में से पोस्टर लगे हुए हैं, तो टेस्ला, आइंस्टाइन, एडिसन, ये वो और एंड में वॉल्टर वाइट। ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या आया पता है, कैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर सारी फोटो और एंड में मोदी जी, उसके बाद कोई है ही नहीं। मतलब मोदी जी फर्स्ट बनते बनते लास्ट ना बन जाए। मोदी वेरी लाइकली वही होगा, मोदी जी लास्ट प्राइम मिनिस्टर जरूर बन सकते हैं इंडिया का। देखो ऐसा नहीं होगा कभी, ठीक है, और बोलेंगे कि ये चीज
इंडिया में मतलब लोग बहुत बोलते हैं पर मैं ये नहीं मानता कि नॉमिनल डेमोक्रेसी रहेगी इंडिया में, ठीक है। नॉमिनल डेमोक्रेसी, फिनोमिनल डेमोक्रेसी नहीं होगी। नॉमिनल डेमोक्रेसी लोग मानते हैं पर नॉमिनल रहेगी। बेसिकली ये इतना होता रहेगा कि सरकारें बनेंगी, सरकारें आएंगी, पर मतलब लेकिन देश नहीं मिटना चाहिए। हाँ, लेकिन बीजेपी का डोमिनेंस रहेगा। मोदी जी, मेरे को कभी कभी ऐसा मूड करता है कि मोदी जी ऐसा ना खुद को प्रेसिडेंट क्यों नहीं नॉमिनेट कर देते हैं, और फिर नहीं, क्योंकि पावर नहीं है ना कोई। अरे मोदी जी भी तो कभी तो थकेंगे ना, कितने के हो गए, 70-70 के हो गए ना मोदी जी। 70 तो क्रॉस कर चुके हैं। मजे की बात ये आई कि भाई कांग्रेस ने प्रोटेस्ट चालू किया। 90 से 100 तक तो मोदी जी का चलने वाला है, मतलब है, और 20 साल मेरा सवाल पता है क्या है, ये रेस कौन जीतेगा, मोदी जी या अडवाणी जी? मतलब इट डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कैलकुलेट द विनर, आई थिंक अडवाणी जी को तो आजकल प्रेसिडेंट के रेस में भी नहीं समझते हैं लोग, मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट तक का नहीं सोचा अडवाणी जी को डालने का उन लोगों ने। कोई वाइस प्रेसिडेंट ही बना दो। धनकार बीट्स को लेके आ गए वहां पे। अरे तू भी देख रहा है तो देख रहा है नहीं, एक एपिसोड मैंने उठाया। देवेन भोजानी जानता है ना? हाँ, कौन? सारा भाई का डायरेक्टर, गरीबा। तो देवेन भोजानी और जगदीप धनकर बहुत एक जैसे नहीं दिखते हैं। यंग जगदीप धनकर। पर मैं ये कह रहा था कि इलेक्शंस होते रहेंगे। अभी देखो मजे की बात ये हुई कि कांग्रेस कर रही है प्रोटेस्ट काले कपड़े पहन के, वो भी फनी था वैसे। मल्लिकार्जुन खड़गे को काले जो कपड़े, उन लोगों ने बोल दिया कि ये इसके खिलाफ, अमित शाह ने बोल दिया कि राम मंदिर बना था ना ये, मतलब ये तो इतना, मतलब ऐसा है कि अगर मैं कोई शो बनाता ना इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर जिसमें मैं ये बोलता कि लाइक राइट विंग है बट इट्स लाइक स्टूपिड राइट विंग, ठीक है, बट तो फिर मैं ऐसे डायलॉग रखता हाउ लाइक, क्योंकि नहीं, बट दैट इज द स्टैंडर्ड ना, वही है ही। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू इमेजिन कि मतलब मैं हर चीज में वही दिख रहा है मुझे। हम हैं ही गधे, हम नहीं है, हम में वो बात, मतलब वो टैलेंट ही नहीं है, टैलेंटिनो नहीं है, अनटैलेंटिनो। बट प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि अमित शाह ने बोला। आई थिंक पॉलिटिशियंस तो हमेशा ही मतलब बोल सकते हैं ऐसी चीजें। प्रॉब्लम इज हाउ क्विकली द ऑडियंस लाइक कंज्यूम्स ऑल ऑफ द राइट। मतलब तू, तेरा पब्लिक ये सुन के, मतलब पब्लिक को लगता है हाँ उसी के लिए काला कपड़ा पहन, मतलब पब्लिक भी वो कॉजैलिटी और उसके साथ जोड़ लेता है कि हाँ यही है मोटिवेशन इनका। पब्लिक जब तू बोलता है तो मतलब हाँ वही है कि मतलब अपर कास्ट, अर्बन, मेरा पब्लिक वही है, मतलब पब्लिक जिसका सुनाई देता है आवाज। हमें और कोई ग्रुप ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है, एक ग्रुप दिखता है, यूसी अर्बन क्लास। अरे यूसी अर्बन से याद आया कि अभी एक नया केस, मतलब इट्स नॉट लाइक इंडिया रेलेवेंट न्यूज, बट 4 गुजराती लड़के पकड़े गए यूएस में, और जब उनको कोर्ट में लाया गया तो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, पर उनका IELTS स्कोर बहुत अच्छा था। तो अरे अभी उसके पहले 4 और IELTS पकड़े गए थे ना, वो उसमें नहीं, ये IELTS वाले के पहले एक और हुआ था ना, जिसमें द टेक ब्रोज बेसिकली वर्किंग हियर, दे वर कॉट विद सम इनसाइडर ट्रेडिंग बिफोर, सो किसी स्टार्टअप में काम करते थे चारों, और इज्जतदार क्राइम है यार। इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ रिस्पेक्टेबल क्राइम। अरे वहीं से शुरू होता है ना वो IELTS, वो कोर्ट में इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, फिर जज ने बोला कि तुम लोग यहाँ आए कैसे, बोलता IELTS निकाल के, IELTS में 9 नंबर है सबके, तो बोलता तो कैसे है ये। बट IELTS और TOEFL क्रैक करने के लिए, बट पता है तेरे को शेक्सपियर पढ़ा होना चाहिए। शेक्सपियर नहीं पढ़ना चाहिए, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश तो चाहिए ना। बहुत ही रेसिस्ट चीज बोलने वाला हूँ मैं, बट इट डजंट काउंट बिकॉज़ आई एम आल्सो इंडियन। सो मेरे को तो चौंकाने वाली बात ये है कि गुजरात में चीटिंग करके भी किसने कर लिया है 9 नंबर। नहीं ऐसा नहीं है, बाहर से लोग आते हैं गुजरात में पढ़ाने। मैं कह रहा था कैंसिल हो जाओगे आप लोग, कैंसिल। ये बोलता है ये रेसिस्ट नहीं है ना, क्योंकि हम भी इंडियन है। जैसे लैरी डेविड ने बोला था, लैरी डेविड बोलता है एक गंजा दूसरे गंजे को बॉल्डी बोल सकता है। नहीं, लेकिन गुजरातियों के लिए हम गुजराती नहीं है ना यार। नहीं, मैं सेंटर में आता हूँ ना, तो मैं मध्य प्रदेश के बॉर्डर से तुम पहुंच सकते हो। बॉर्डर से गुजरात में नहीं जा सकते। मैं भी वैसे बॉर्डर वाला ही हूँ। मध्य प्रदेश के बॉर्डर से गुजरात कहाँ लगा, वो कैसी बात है? नहीं है, अरे मैं मतलब जा सकते हो तुम क्रॉस करके, ज्यादा नहीं क्रॉस करना पड़ेगा। अरे मैं बोल रहा हूँ कि किसी तमिलनाडु में रहने वाले को दिल्ली वाले को बोलने में लगता होगा, बट मेरे को नहीं लगता। मैं ऊपर नीचे दोनों जगह बोल लेता हूँ। अरे तू क्रॉस करके जा सकता है ना, तू राजस्थान पहुंच जा, फिर तू पहुंच जाएगा गुजरात। मतलब इतना दूर नहीं। मैं थोड़ी देर में गुजरात ही आ जाएगा। ये
अपना ये राहुल कमल है, जो राहुल कमल अभी भी यही हार्वर्ड में नहीं है, क्या कर रहा है? नहीं पता नहीं कहाँ है वो गिफ्ट सिटी में था। वही मुझे गिफ्ट सिटी बन गई, कब बनी? नहीं गिफ्ट सिटी का जो रेलिक जो है, जो बन सकता था और लेकिन बना क्या हड़प्पा है क्या गिफ्ट सिटी? सिटी कभी बनी नहीं, लेकिन खुदाई में निकल रही है। हाँ, रेलिक पहले से ही रेलिक है वो, तो वहां पहुंच गया था। 4-5 बिल्डिंग होगा तो पैसा मिला होगा दिखाने के लिए कि ये बिल्डिंग दिखा के 10 साल बाद पूछेंगे मोदी। अच्छा ये पहले का फोटो है गिफ्ट सिटी का क्या हुआ? तो मोदी जी बोलेंगे फोटो पहले का नहीं है वो बिल्डिंग तो गिफ्ट सिटी में कुछ तो बिल्डिंग बन गया है ना, मतलब जो, लेकिन कुछ ऑक्यूपेशन नहीं है, बेसिकली ऑक्यूपेंसी किसी बिल्डिंग में नहीं है, तो बना के रख दिया और देयर आर नो टेकर्स फॉर मेनी। गुज्जू बिजनेसमैन ने एज एन इन्वेस्टमेंट डाल दिया होगा कि हाँ भाई बिल्डिंग बना देते हैं, हाँ हो गया मेरा एसेट। वहाँ वो दिखाने पहुंच गया है। बट उसने, तूने देखा है, इमीडिएटली कोर्स करेक्ट करने के लिए 4 दिन बाद उसने राहुल गांधी के बारे में कुछ अच्छा बोला, कुछ तो लिख दिया। ये लोग इतने लेजी है ना, कैसे लोग मतलब ऐसे फेमस जर्नलिस्ट बन के बैठे हैं ना टीवी पे, मतलब सीरियसली क्या स्टैंडर्ड है सारा, मतलब इट्स लाइक सच अ स्टूपिड फॉर्मूला ना, कि पता है उनको कि अगर ये कुछ भी माइन्यूटली भी अगर एंटी बीजेपी बोलेंगे तो गाली खाएंगे, तो मतलब इनका फॉर्मूला ही सेट है कि इधर से गाली खाने के लिए बचने के लिए एकदम से कुछ बोल के एक पप्पू जोक मार दो, और फिर उधर से बचने के लिए ये कर दो, मतलब कभी भी, मतलब इनका पूरा मोटिवेशन ही वही है ना, मतलब ये कभी लॉजिक से बात नहीं, देश भी यही कर रहा है, स्टैंड अप वही यही कर रहा है, सबको यही कर रहा है। एग्जैक्टली। और ये डॉलर गिफ्ट सिटी फोटो आज की है कि पहले की है, मुझे ये बता दो। अभी का है। तो अभी का है, मतलब कुछ तो बना है, कुछ तो। हाँ, इस बात पे एक और नहीं, ये बिल्डिंग वहाँ पे जीरो है ऐसे तो किसी ने बोला नहीं है। गिफ्ट सिटी जगह एग्जिस्ट करता है, लोग रहते हैं, इंसान वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे ऐसे बिल्डिंग ऐसा प्रोजेक्ट बन के फेंक दिया, भगवान का वरदान है मोदी जी का। और वो वहाँ पे कोई बैंक नहीं आया, कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, तो अबैंडन टाउन है गिफ्ट सिटी इन अ वे, घोस्ट सिटी तो अबैंडन तो तब होगा जब कोई अबैंडन करेगा, अबैंडन होगा। क्योंकि पैसा नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट भी तो आना चाहिए। तो अरे पीयूष गोयल ने तो बोला ना, अभी पीयूष गोयल ने बोला कि इंडिया 30 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर वेरी सून, और फिर वेरी सून बोला तो कि मतलब वेरी सून, बस मान 5 नहीं बना, वो जो 5 के लिए मैथमेटिक्स मांगा वो नहीं आया अब तक। 30 तक के 5 कहाँ निकल आगे बढ़ चुके हैं वैसे, नहीं बढ़े अपन ने आगे, वैसे 5 ट्रिलियन नहीं हुआ अपन, नहीं, अरे मैं बोल रहा हूँ कि उस 5 के प्रॉमिस से आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ती है। I just want to tell the listeners that Aditya genuinely नहीं पहनता। I'm just making a joke. Aditya only practice. That's it. ठीक है, हो गया बोल, हो गया, सॉरी। तो हाँ, इससे फिर तो पहली चीज तो कि पता है, अब थोड़ा सा सीरियस, मेरे को फ्रस्ट्रेशन पता है किस चीज से होता है। मुझे फ्रस्ट्रेशन इस चीज से होता है कि ये जो लोग हैं जो ये गवर्नमेंट में हैं, इनका ना कुछ भी इनको लाइक गवर्नेंस से लेना देना है ही नहीं, ठीक है। इनका आइडिया ऑफ गवर्नेंस इतना सरफेस लेवल है, क्या ये बना दिया। तू मुझे लिटरली ये बता कि एक प्राइम मिनिस्टर जो एक कंट्री विच डील्स विद सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, उसको लाइक अगर वो सीरियस है अपने रोल को लेकर, तो उसको इन सब से फर्क पड़ता है कि भाई रोड का नाम क्या हो रहा है, और मतलब या थाली बजा रहे हैं कि वो कर रही है। लाइक दीज आर द क्वेश्चंस दैट he should be dealing with are much bigger than this, but the problem is that he's dumb. Exactly. He's just not smart enough to kind of even comprehend the gravity of the questions that our country faces. How is this even helping? चल hypothetically speaking, अगर तुम्हारा कोई हिंदू, how is this even helping Hindu राष्ट्र? Like, matlab, how is this? I'm not talking about just Central Vista and all. Like, how is just even? I mean, you know what I'm saying? Like, what they are saying? They are reclaiming whatever from like colonial past. इससे अमित मालविया की लाइफ में क्या इम्प्रूव हुआ, ये बताओ मुझे। अमित मालविया की अच्छा लगा। अभी ये गवर्नमेंट का पूरा वाइब्स है, पॉजिटिव वाइब्स है उसकी लाइफ। भाई तू अमित मालविया के लाइफ का इम्प्रूवमेंट और चाहिए क्या, बिना किसी टैलेंट के? मैं बार बहुत लो रख रहा हूँ कि उसमें भी क्या हुआ उसका। वो बार इतना लो है कि अमित मालविया का लाइफ तो अच्छा चल रहा है ना, तो मतलब अमित मालविया जैसे ही तो देश चला रहे हैं। गा कौन रही है? देखते हैं कितने स्टीरियोटाइप्स को भी टिक ऑफ करते हैं। अरे मस्जिद है सबसे पहले, ठीक है। ये क्या गोवा है? बच्चन साहब है क्या? नहीं, केरला। अरे यार ये आदमी तो इसका तो कोई स्पाइन ही नहीं है, ये हर किसी के लिए गिर जाएगा ये। कश्मीर
टोपी भी थी। अंकल, अरे अनुपम अंकल यूएस से भी आए। यार तुम लोग अभी आजकल शेखर सुमन को देखा है क्या? शेखर सुमन जग्गू दादा बनता जा रहा है लुक्स में, देखना जाके बाद में रैंडम। शेखर सुमन बॉडी बिल्डर। ये आदमी कौन है? ये आदमी कौन था? सोनू। अबे सोनू के पहले जो आदमी जो झंडा ठहरा। अरे ये तो लिटरली उसका ही कॉपी है। किसकी कॉपी है? गाने में अच्छा नहीं दिस इज अ वन ऑफ द मिलेसुर ना। हाँ न्यू इंडिया का मिलेसुर, यही तो मैंने तुमको बोला था पहले। यार कोहली की एक्टिंग दिन पे दिन बेटर होती जा रही है। अनुष्का से बेटर एक्टिंग कर रहा है कोहली यहाँ पे। जीजू इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब। जीजू गुड जॉब। अभी इस सिक्किम वालों को 1 BHK में क्यों खड़ा कर दिया था? दीदी आई, मिथाली दीदी मैरी कॉम भी। अरे ये भी आ गए, बाहुबली भी आ गए। ये डिजर्व करता था। ओ ये भी है सुनील शेट्टी का दामाद। कौन है ये? कौन है? आई डोंट नो। ये तो केरला है। तेलुगु एक्ट्रेस का गेस है, मतलब बंगाली भी होगा दोस्त। ये इनका मिलेसुर मेरा तुम्हारा है ना। हाँ वही है सीधा ये आइडिया भी ओरिजिनल नहीं पर लिरिक्स एक ही लाइन है, हर घर तिरंगा अलग अलग म्यूजिक में बोल सकते हो, कुछ तो बोल ज्यादा सोचना। दैट इज टू मच फॉर न्यू इंडिया ना। अरे नीरज चोपड़ा। अरे इसको भी ले आए। ये भी कोई होगी। मोदी जी कब आएंगे? मतलब ये मोदी जी क्यों नहीं आ रहे? अरे लास्ट में आएंगे। मोदी जी दिल में आते हैं। राज्यसभा में जा रही है ना। अरे एक सेकंड पॉज। एज यूजुअल मतलब आई एम इचिंग टू लुक एट। ये एक सस्ता रहमान कौन ही सस्ता रहमान? पहली 2.5 मिनट के ऊपर हो गया गाना अभी। ये लिरिक्स आया। ये आ गया अक्षय भाई। अक्षय तो झंडे को मोलेस्ट क्यों किया ऐसे करके? इसमें तुम्हारे इंटरनेशनल हीरोज कोई नहीं है यार। आएंगे बेचारे, वो भी आएंगे। विमल आया, विमल भी आ गया। देखा सिर्फ पटेल ब्रदर्स ही हैं सिर्फ। इससे अच्छे तो गुजराती चोले पंजाबी चोले कर देते। देख रहा है सब कुछ हो गया। स्वच्छ भारत कवर हो गया, डिजिटल इंडिया कवर हो गया, वैक्सीन कवर हो गई। सूर्यवंशी के कास्ट वाले सब आ गए। ये कौन है? बंगाली। वो ही इसके पहले वाला। नो आइडिया। इसके जस्ट पहले जो आया था वो जो लड़का ना, नहीं पता। वो कोई ही, पर वो उसको मैंने आज तक वो उड़िया है कि बंगाली मेरे को ये भी नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। ये क्यों ऐसे? अच्छा ये तो मूफा का स्क्रीनशॉट। ये कर क्या है? ये कौन है? अरे पाजी लोगों ने तो बैठे बैठे कर दिया थी। धर्मेंद्र ने जब अपने घर की छत पर लोहा की शूटिंग की थी वैसी कपिल ताश ने भी कर दिया। आए अरे आ गए मोदी जी आ गए। मुझे दिखा रहे हैं, देखो कितना पॉपुलर है। मोदी जी को ऐसे बोला होगा क्या? मोदी जी यार पीछे जा। मैं मोदी जी को ही देखता रह गया। बच्चे मोदी जी को कैसे कैसे गंदे गंदी तरीके से छूते वो तो देखने दो मुझे एक बार। कहाँ छू रहे मोदी जी को? अरे मोदी जी के चेहरे में देखो। मोदी जी के बूब्स को टच किया है मैंने, देखा भी। अच्छा एक बात मिलेसुर मेरा तुम्हारा में प्राइम मिनिस्टर का कोई फुटेज कुछ भी नहीं है ना। और मैं एक बात नहीं, दिस स्पेसिफिकली आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज़ कोई सेंट्रिस्ट तूने जहाँ पॉज किया हुआ है, तूने जहाँ पॉज किया वो लड़की को देख और मैं सुन मोदी जी उसको देखेंगे बोल के माय आईज आर हियर। अरे भाई लेकिन ये बहुत ही was a pretty good composition man. This is, I cannot believe that Sonu Nigam and Asha Bhosle, like you have not only created propaganda, you have also wasted a lot of good talent. Sonu Nigam has also done another song which is like गेंदाई मारा चौका। नहीं मैं कर ये तो देखो ऐसा है कि आपको 15 दिन की डेडलाइन दी है कि 15 दिन में करना है तो आदमी यही कर पाता है। तो आगे मोदी जी के साथ क्या क्या होता है मैं देखना। और मैंने स्पेसिफिकली मैंने इसलिए पूछा कि कोई तो आके बोलेगा कि
मिलेसुर वाज आल्सो प्रोपेगेंडा मैन, ये कोई बोलेगा, लेकिन तुम देखो उसमें भाई एक बात कोई तू बाहर में जाए, प्रोपेगेंडा होगा, बट गवर्नमेंट का when was Milesur first, when did it come out first? 80s, The original one. 87-88 and you still remember, and you still, तुझे लगता है ये 4 महीने बाद भी तेरे को कोई मतलब the views will die out, nothing is going to happen because the artistic quality is so bad. Exactly. गेंद आए, मोदी जी आए मतलब वीडियो खत्म भाई, इसके बचा हुआ है ना शो स्टॉपर, वो मैंगो 40 सेकंड क्या होगा, मैंगो सिर्फ झंडा। तो गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं और सारे जर्नलिस्ट जा रहे हैं वहां पे, तो मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जब बच्चों से गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछा कि भाई आपके अप एंड कमिंग यूथ लीडर्स कौन है, और किसी ने भी जय शाह का नाम नहीं दिया। मैं यार टीवी की इस तरफ से जय शाह चिल्ला रहा हूँ। मैं सुबह उठा तो सुबह उठने के 1-2 मिनट बाद में ट्विटर देखता हूँ, तो जो सबसे पहला ट्वीट आज मैं देखा ना सुबह, वो पता है क्या था? जो राजनाथ सिंह है मेरे लोग अलाइक, वो कहीं पे स्पीच दे रहे थे कि कांग्रेस ने, मुझे लगता है एक ही टॉपिक इनके बाद, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस ने इसको इज्जत नहीं, आज की स्पीच ऐसी डिफेंस वाला, तो आज की बोस के लिए कि बोस को इज्जत नहीं दी, ऐसा वैसा। मेरा मन क्या किया, वो जो सूर्यवंशम वाली पिक्चर है ना, अमिताभ बच्चन से मेरा वो पिक्चर डाल के बोस वाचिंग दिस स्पीच लाइक करना था मेरे को, बट एनीवे सेम एनर्जी ना कि अनडिवाइडेड इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इट्स लाइक सेइंग बायलैटरल्स में। अच्छा सोच, अब इनके लिए कितना अच्छा समझ ले कि बायलैटरल्स पे मत जा अभी, मुझे इट्स लाइक यही है ना कि डेटा को ऐसे स्लाइस करो तो बेस्ट टीम इंडिया है, वैसे मतलब अनडिवाइडेड इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बोस है। मुझे ये बताओ कि अगर 1945 में बोस जी ये डिसाइड नहीं करते कि मुझे छुप जाना है, मुझे दिखना नहीं है दोस्तों, तो क्या फिर 47 में क्या बोस जी और पटेल जी के बीच में रॉयल रंबल होता प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इनकी दुनिया? चल क्या हो रहा वो नहीं किसी ने, अरे स्मार्ट सिटी जबरदस्त पार्टी है ना, बीजेपी जबरदस्त नहीं है, इतनी जबरदस्त पार्टी है, मैं बताता हूँ उसका क्या, तुम्हें क्या लगता है बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत जबरदस्त पार्टी बहुत जबरदस्त पार्टी है बीजेपी, बताता हूँ क्यों। उन्होंने पूरे इंडिया में टाइप्स ऑफ इंडिया से लेकर हिंदुस्तान से सब में फ्रंट पेज पे से पार्ट दिया पूरा, क्या कि पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में इंडियन एक्सपोर्ट्स आर नाउ $29 बिलियन। ठीक है, पब्लिक फर्स्ट टाइम कभी हुआ कांग्रेस का 29। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा जो इंपोर्ट है वो $60 बिलियन पे पहुंच गया है, तो जो डेफिसिट है इट्स द हाईएस्ट वी एवर हैड। और इवन ना हमारे खिलाड़ी जो है वो 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वो बात अलग है कि ओपोनेंट्स 180 स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और हर जगह उसको एक ही जगह निकाल दूंगा। और पब्लिक को तो ये भी नहीं समझ में आता है कि जो बेसिक कंपाउंडिंग का जो लॉ है स्कूल में ही पढ़ा देते हैं कि अगर कुछ ना भी करो तो भी थोड़ा ग्रोथ, तो भी कुछ तो ग्रोथ हो जाएगा। अगर तुम ऐसे इन्फ्लेशन की वजह से तुम्हारा इकोनॉमी बड़ा दिखेगा तो, बट किसी को पूछना ही नहीं है, मतलब 5 ट्रिलियन बन जाएंगे हम, बस कभी तो बनेंगे फ्यूचर में। 30 ट्रिलियन वो 30 के आगे वो 70 भी बोल देता है, तो पूछने थोड़े वाला, किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई कुछ नहीं आ रहा। और वो 5 ट्रिलियन का मैं तेरे को पक्का बोलता हूँ। कौन थे वो, एक और कोई ने बोल दिया ना अपने, जयंत सिन्हा ने बोला, किसने बोला है कि कहाँ है इन्फ्लेशन, नहीं मिल रहा, ढूंढो, नहीं मिल, मतलब ये, अरे वो तो तुम लोग याद है आज से 3 साल पहले प्रसाद, रविशंकर प्रसाद द ग्रेटेस्ट, मूवी टिकट बिक रहा है, तो आज से मूवी टिकट भी नहीं बिक रहा है अब तो। वो भी लॉजिक दे रहा था ना, वो तो सड़ा हुआ लॉजिक दे रहे थे अपने जेनेरिक इंडियन अंकल। ये भाई साहब तो बोलने कहा नहीं है ही नहीं, मतलब दे आर नाउ एट डिनायल स्टेज। 5 ट्रिलियन के लिए मेरा एक थियरी है कि देखो तो पिक एनी नंबर, राइट, लाइक 10 ट्रिलियन बोल सकते थे, तो 5 ही क्यों चुना उन्होंने? मैं बहुत सोचा इसके बारे में, बहुत सोचा इस बारे में। मैं सोचा कि अभी हम लोग 2.73 के करीब हैं, तो 5 क्यों, मतलब बहुत ज्यादा पास नहीं है, मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। मैजिक नंबर क्या है कि 5 ट्रिलियन होने से क्या हो जाएगा कि देश के हर इंसान के पास 3 गुना जीडीपी हो जाएगा। कुछ मैच कराना होगा, राइम कराना नहीं, तो मैं देख रहा था, मतलब कि तो वर्ल्ड इकोनॉमीज का नंबर्स देख के, तो चौथे नंबर पे, चौथा या 5वां जापान है, ठीक है, और जापान का 5 ट्रिलियन है। अरे तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो भाई। जिस पॉइंट पे इन्होंने बोला था, इनको लगा होगा कि 5 टच कर देंगे तो जापान के ऊपर, तो जापान के ऊपर मतलब अपन 4th फिर क्लेम करते हैं। फिर ये नहीं सोचा किसी ने कि जापान का भी तो बढ़ेगा ना। तूने कुछ ज्यादा सोच लिया, मैं वही बोल रहा हूँ। आई एम 100% श्योर nobody bothered to look at anything. All they looked at कि अच्छा नंबर तो उसमें 5 से मैच, उसमें कुछ तो स्पीच में कुछ मैच करवाना और राइम करवाना होगा कि हमारे 5 साल हो गए हैं हमारी सरकार के, तो अब 5 बोल दो साला, मतलब कुछ भी, बस व्हाटएवर, मतलब जिसका कुछ
व्हाट्सएप पे पहले ही जो आ चुका होगा, मतलब पहले होता था 5 साल का योजना, अब होता है 5 ट्रिलियन टन। अभी हो सकता है, अभी ये 30 शायद बिना मतलब के बोल गए, मेरे हिसाब से तो 75वां वो था, तो या तो 75 बोल देते ट्रिलियन या 7.5 ट्रिलियन बोल देते कुछ। अभी वो सुन रहे हो, तिरंगा हर घर भगवा छाएगा, तिरंगा हर घर भगवा छाएगा। अच्छा, तो ये आरएसएस भी अपनी डीपी चेंज कर रही है? आरएसएस डीपी चेंज नहीं करता है दोस्त, डीपी आरएसएस चेंज करता है। आरएसएस ने तो अपना सोवियत रशिया, आरएसएस चेंज, डीपी चेंजेस। आरएसएस ने तो चड्डी बदल लिया, डीपी क्यों नहीं बदलेंगे? तो चड्डी नहीं, सोच बदलो दोस्त। हरे भरे यार तुम लोग याद है अपन ने अपनी पॉडकास्ट में डिस्कस किया है कुछ आज से 10-15 एपिसोड पहले, तब मोदी जी ने आज से 2 साल पहले एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि जब 75 साल होंगे तो हर शहर में 75 लेक्स बनाएंगे। याद है कि नहीं तुम लोगों को? ये क्या हुआ? अरे 15 अगस्त 2075वें साल में बुलेट ट्रेन चलने वाली थी। बुलेट ट्रेन का पहला 2 स्टेशन के, हाँ अब भी मैं बता रहा हूँ। इस पॉडकास्ट का अहमियत मुझे आज समझ में आया। कैसे भी 500-600 साल बाद होगा, हरप्पा की तरह, मतलब सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा, तो ये पॉडकास्ट निकलेगा, तो लोगों को समझ आएगा कि ये मोदी इरा में प्रॉमिसेस क्या हुआ करते थे, उनके साथ हुआ क्या, क्रॉनिकल होगा इसमें ये, क्योंकि कोई न्यूज चैनल वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आर्काइवल है ना, हम लोगों का आर्काइवल वैल्यू बहुत है इस पॉडकास्ट। देखो मैंने एक फोटो शेयर की है, टेक अ लुक एट दैट। हिस्ट्री हमें याद है 2000 मनमोहन सिंह की तरह। भाई कहाँ शेयर करी है फोटो, ये बता दे। अच्छा आ रही आ गया। अरे 2017 की रिपोर्ट में था। यस हाँ बोल दे, तू बोल। हाँ, बुलेट ट्रेन विल मेक इट्स फर्स्ट ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद ऑन 15 अगस्त 2022। बट इसका तो लेकिन तेरे को रीजन पता है ना कि, पर यार एक चीज तो मैं बोल दूंगा इससे पहले, कोविड की वजह से क्या 2 साल मोदी जी को क्रेडिट नहीं देते हो, पर मोदी जी ने बहुत पहले अहमदाबाद से गोधरा बुलेट ट्रेन चलवा दी थी। बुलेट्स ट्रेन, लॉट्स ऑफ बुलेट्स इन अ ट्रेन। देखो ब्रैड पिट का मूवी आ गया बुलेट। हाँ वही मैं बोलने वाला था। मे बी मोदी जी ये कह रहे होंगे उस समय, जिस समय मोदी जी हुए थे 2017 में, वो उस मूवी का कांसेप्ट भी नहीं रहा होगा, मतलब वो पहले आ गया, ये नहीं आ पाया। हो सकता है मोदी जी भी एक ट्रेन भेजेंगे। अरे यार इसमें एक और चीज देख रहा हूँ भाई, तूने भेजा है ना, क्या मैं बता रहा हूँ होगा क्या, ये मुंबई टू अहमदाबाद जो ट्रेन चलती होगी ना जनशताब्दी कोई, उसमें स्क्रीन लगा के वो ब्रैड पिट का मूवी चला देंगे, बोलेंगे कि ये सुनो तो मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चल। इस ट्वीट में मैंने एक और चीज, लोग बोलेंगे देखा मास्टर स्ट्रोक। #एब इन इंडिया भी देखा मैंने, RIP। क्या एब इन इंडिया, एब आए हुए थे तब। एब का भी आबे, वही आबे। अबे अरे ये तो बेस्ट था, किसी ने तो लिखा था, सीधे लिंकन पहुंच गया था भाई, मेरे को लगा ये कौन सा कनेक्शन। किसी ने ट्वीट किया था बीच में, ट्विटर का एक रैंडम याद है मुझे, अबे मोदी मीट ऐसा कुछ तो लिखा था, किसी ने ट्वीट किया था, नीचे किसी ने तो रिप्लाई किया था, प्लीज रिस्पेक्ट आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज दिस अबे। मुझे ये भी याद है। ये तो माय फ्रेंड आबे गणेशा, ओ माय फ्रेंड गणेशा, माय फ्रेंड। अरे कुछ ऐसा एक हफ्ते पहले इंडियन ट्विटर से याद है, मतलब अपने मतलब देसी लोग ना किसी को कुछ भी ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। 4-5 दिन पहले देख रहा था कि शेम ऑन रहाणे ऐसा कुछ तो चल रहा था, ठीक है, ट्विटर पे बहुत नीचे के ट्रेंडिंग इसमें समथिंग लाइक दैट, क्लिक किया तो देखा तो नहीं और हैव सम रिस्पेक्ट रहाणे समथिंग लाइक दिस गोइंग ऑन, तो क्लिक किया तो उसने एक फोटो शेयर किया था अपने बीवी बच्चे का, लिखा था माई होल वर्ल्ड इन अ पिक्चर। ठीक है अब मैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर नीचे कमेंट में देखा तो हर कोई ये सिखा रहा है उसको कि अपने माता पिता को कैसे भूल गए। अरे इससे याद है मुझे कल की एक घटना मुझे सुनना, कल की घटना सुन। कल ना मैं ऐसे देखा कि एक रैंडम ट्वीट, एक रैंडम अकाउंट जिसके 20-25 से भी ज्यादा फॉलोअर नहीं है, उसको कई लोग रीट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट है थैंक यू जीजू, तो मैंने ट्वीट पे क्लिक किया क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी का रिप्लाई है। तो ऊपर वो ओरिजिनली ट्वीट था, विराट कोहली ने कुछ ऐसा अपना ऐड का ट्वीट किया है और उसके नीचे उस बंदे ने थैंक यू जीजू किया। फिर लोग उससे बोले भाई जीजू कैसे हुआ तेरा? तो वो लोगों को बता रहा है कि मैं वो लड़का अयोध्या से है और अनुष्का की फैमिली ओरिजिनली अयोध्या से है, इसलिए अनुष्का को दीदी मानता है, इसलिए विराट कोहली इसके जीजू है। वो लड़ रहा है लोगों से वहां पे, वो लड़ रहा है। अलग क्रिंज यूनिवर्स है भाई। वो दिन मार्नस लाबुशेन ने कुछ लिख दिया, थैंक यू सचिन जी बोलो, नहीं सचिन सर क्यों नहीं बोल रहे? सर, हाँ। वो तो बैटिंग का भगवान।
मतलब इट्स लाइक इंसान जगह जा जाके मतलब एम्बैरेसिंग कर भाई, मतलब वाई इंडिया में इंसान 5-6 साल की उम्र से सीधे अंकल बन के निकलता है। एक्चुअली इंडिया इज अ फैक्ट्री, अंकल प्रोडक्शन की। मतलब तू सोच, ये जो उसको बोल रहा था कि अपने माता पिता को क्यों नहीं याद कर रहे हो, वो अंकल नहीं था, एक्चुअल एज वाइज अंकल नहीं था, ही वाज वेरी लाइकली 18-19 ईयर ओल्ड। उसको पहला एक पिक्चर, ये लड़के का सोच भाई, तू बता, तू कहीं का होगा रे ओरिजिनल, मैं हूँ कहीं का ओरिजिनल, मेरे दादा होंगे कहीं के, ठीक है। अब भाई वहां तक की कोई लड़की, वो भी अनुष्का शर्मा अयोध्या में बड़ी भी नहीं हुआ, तो बैंगलोर में कहीं बड़ी हुई है, ठीक है भाई। इस 19 साल के लड़के को ये किसने सिखा दिया कि वो तेरी दीदी है और तेरे को विराट कोहली को जीजा, मतलब लाइक I'm very normal, like you are a teenager and Anushka is a star, she's a good looking actor and you are a hormonal teenager, like कैसे तुम इतना अंकल कैसे हो सकता है कोई आदमी? यही लड़के होते हैं जो फिर शादी होने के बाद सरयू नदी में जाके पिट जाते हैं अपनी बीवी को किस चक्कर में। वो तो वो रहते रहे जो पूछते हैं which is your favorite ज्योति। एक्चुअली ये लड़का है 4 साल बाद किसी लड़की पूछे which is your favorite ज्योति, ये पहले ज्योतिर्लिंग, फिर शादी होगी, फिर वहां जाके पिटेगा। he's so proud of the fact कि उसका विलेज एरिया जो अयोध्या में है। बट ये अभी लोग by the way on this note मैं एक चीज सुन, मेरी बात, मैं यूएस में ऐसे लोगों से मिला हूँ अपनी एज के लोग जो यहाँ पे टेक में काम कर रहे हैं, जो तुमसे बात करने के बाद तुमसे पूछेंगे विच डिस्ट्रिक्ट I mean, I know, I mean, it's a like, I don't know which district is a very weird question sometimes. हाँ, मतलब मेरे से एक्चुअली बात तक पूछा भी नहीं किसी ने। which district नहीं पूछा, तो डिस्ट्रिक्ट मेरे को सरनेम पूछा है बहुत लोगों ने, सरनेम बहुत लोगों ने पूछा है। भैया सरनेम, भाई तेरा सरनेम बहुत वैसे कंफ्यूजिंग है। मेरा सरनेम है ही नहीं। वही जो भी है तेरा। तुझे अपना लिंक्डइन डिलीट कर दिया क्या? है तो भाई तुमसे तुम्हारे पड़ोसियों का सरनेम पूछा है कि नहीं? मेरे से वो भी पूछा है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में। मेरे पड़ोस में कोई देसी है ही नहीं। नहीं, ओ अच्छा तुम यहाँ रहते हो, अच्छा बाजू वाले क्या सरनेम क्या लिखते हैं? मैं बोला तुम्हें क्या करना। उनको बोलना शाहनवाज गनी। गैंडी। अरे गैंडी से याद आया, गैंडी है। गूगल का ऐड देखा कि नहीं देखा? हाँ वो देखा कि अच्छा लोगों को फरहान अख्तर, मेरे को नहीं पसंद फरहान अख्तर की आवाज, सॉरी, मतलब फरहान अच्छा इंसान होगा, सब कुछ ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम लाइफ में सबको कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। डेवी आजादी के ये 25-75 साल हमने क्या पाया? तुम्हारा ये मनमोहन सिंह क्यों बन रहा है फरहान अख्तर? मेरा सब कुछ मनमोहन सिंह को धीरे से केजरीवाल बन जाएगा फिर, और फिर मैं झंडे बंटवा दूंगा जी। फरहान अख्तर के गले में खराश होता है हमेशा, मेरी लॉन्ड्री का एक भी। उसमें क्या हुआ, वो उसमें इस एड में वो एक मोमेंट है कि इंदिरा गांधी बोल रही ना, वहां से हमारा भारत कैसा दिखता है। एक्चुअली इंदिरा गांधी की आवाज भी काफी फरहान अख्तर से मिलती जुलती है। बट वो एकदम परफेक्ट मोदी जी मोमेंट है। तो राकेश शर्मा कहता है कि सारे से अच्छे, मैं बताऊं मोदी जी नहीं कर पाएंगे। मोदी जी अगर स्क्रिप्टेड नहीं है ना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है मोदी जी में। मोदी जी ये स्क्रिप्टेड हो भी सकता है, राकेश शर्मा को बोला गया होगा कि ये बोलना है तेरे को, उधर जाके दिखे तो। अच्छा हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन मोदी जी ना उसको इतना क्रिंज बना देते ना, राकेश जी वहां जाकर के थेपलों की याद तो आती होगी। नहीं, और मोदी जी ऐसा कुछ उसको ना, मोदी जी क्या करते हैं ना कि हर चीज को ऐसा ह्यूमर लाने की कोशिश करते। उनको लगता है कि वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर लाते हैं, तो उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे, राकेश जी वहां जाके थेपले वेपले होते हैं क्या? जैसे जिस तरह से हम यहाँ पे यात्रा में जाते हैं तो हम मूंग दाल का हलवा ले जाते हैं, तो आउटर स्पेस में भी कुछ ऐसा होता है क्या? ये तो जदगुरु नहीं, अरे यार ये एक अभी इंदिरा गांधी से याद आया, मूवी आ रही है सदगुरु कब हंसता है बताए? सदगुरु तब हंसता है जब कुछ कहा भी है, तो वो पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने सेव करके रखा था। सदगुरु उस मोमेंट पे हंसता है जब उसका जिब्रिश खत्म होने को है और अब उसको लग रहा है और सेंटेंस एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो हंसते। माइकल स्कॉट सदगुरु वहां खत्म कर देता है। सदगुरु हंसता है तो पब्लिक उसके साथ हंसता है। When Sadhguru cries, the world, Sadhguru laughs, the world laughs with him. I hope someday when Sadhguru laughs, the world laughs at him, which is not possible. मेरा इस हफ्ते का सबसे बड़ा मेजर जो burning question है, 3 क्वेश्चन हैं एक्चुअली, all of which have been raised by। उसके पहले क्वेश्चन 0 भी है ना,
पॉन्डिलिट फेस्ट और पॉन्डिलिट फेस्ट क्यों नहीं देखते? हाँ, लीडिंग क्वेश्चन है आप लोग क्यों नहीं देखते पॉन्डिलिट फेस्ट? क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इसीलिए मैं मतलब लिटरली मैं ना वो देखता हूँ। I am not quite dead inside. हाँ, मैं मतलब फैबुलस लाइफ बीजेपी नहीं सॉरी बॉलीवुड लाइफ बीजेपी बट वो देख सकता हूँ मैं, पर मैं पॉन्डी लिटरेचर नहीं देख सकता हूँ। जब तेरे मन में फैबुलस लाइव्स के बाद बीजेपी वाइज आ रहा है तो आई थिंक यू आर देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर। पॉन्डिलिट फेस्ट के सेशंस कौन होस्ट कर रहा है? अनुपम खेर। नहीं वो ना ऑप इंडिया वाले कर रहे हैं ना, अभिजीत अय्यर मित्रा। मैं तो ज्यादा ही क्रेडिट दे रहा था, अनुपम खेर बोल दिया मैंने। अभिजीत मित्रा, रामा, ये रंगा अंकल, फिर तेरा वो बंदा भी कू का जो सीईओ है, कोई कू का कौन सीईओ है? कोई है ना, होगा ना कोई। तो ये पूरा सेशन मतलब इस पे डिस्कस कर रहा था कि कू का सीईओ ये बोलता है कि कू एज अ प्रोडक्ट ना रीडिफाइन कर रहा है, इट्स पुटिंग द पावर ऑफ सोशल मीडिया इनटू every country's hands. तो वो लोग every country's hands? हाँ, so they do not come up with this arbitrary notion of what is right and what is wrong when it comes to censorship. So what is right or wrong is very country and region specific. So Koo is empowering countries to do that. तो सामने वाला बोल रहा है तो नाइजीरिया और इंडोनेशिया में भी आप लेके जा सकते हो, तो बोल रहा है हाँ नाइजीरिया और इंडोनेशिया में भी जाएंगे और हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई चीज सही है या गलत है, वो हम इंडोनेशिया की सरकार को, नाइजीरिया बेसिकली सरकार को बोलेंगे ये। अच्छा मुझे एक चीज बता, मतलब इतना बेसिकली ये है कि इस्लामोफोबिया अमेरिका में प्रॉब्लमेटिक होगा तो ट्विटर उसको अमेरिका में बैन करेगा, लेकिन इंडिया पहुंचते ही इस्लामोफोबिया अलाउ करना चाहिए क्योंकि सोशली तो ये इतना नहीं लेकिन मेरे को ये समझ सरकार क्या होता है। लाइक यूजुअली मैंने सुना कि वी आर गिविंग पावर टू द पीपल, लोग डिसाइड कर, सरकार को से डिसाइड करने लगा। कू सरकार को देने वाला है बेसिकली, तू समझ रहा है ना? कू तो सरकार, कू को सरकार से क्या मतलब है? एक ही सरकार से मतलब है। कू कौन सा ग्लोबल प्रोडक्ट है कि वो इंडोनेशिया में कौन यूज। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जब ये एपिसोड हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगा तो भारतीय जनता पॉडकास्ट के जन्म से 3 वर्ष हो चुके हैं। दिस इज आवर 3rd एनिवर्सरी और एज आई से दिस इज आवर 1 देवेगौड़ा 1 इंदर कुमार गुजराल कंप्लीटेड। सो मच हुआ है, हम कितना बाकी है? एक कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली कब है? डेट पता है? ये 13 सितंबर। ओ 13 सितंबर, ओके। मतलब मोदी जी के बर्थडे से बस 3 दिन पहले। अरे यार मोदी जी के बर्थडे विश भी कर देंगे अपन ना। मोदी जी हैप्पी बर्थडे, ये आप तक पहुंच जाए हमारे दिलों की आवाज। नहीं ये आप तक ना पहुंचे। मोदी जी से शुरू करूं क्या फिर मैं? थोड़ा कुछ साल बाद ग्रीन कार्ड की बात पहुंच जाए। अरे यार मत तो कर यार वो। पर मोदी जी से शुरू करूं क्या मैं? हाँ, मोदी जी से पॉन्डिलिट फेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन मोदी जी जहाँ खड़े होते हैं बात वहीं से शुरू होती है। मोदी जी ने नाम चेंज कर दिया, पहले तो सेंट्रल विस्टा बनाया, री बनाया, और फिर नाम अभी हो गया सेंट्रल विस्टा का कर्तव्य पथ, और राजपथ का कर्तव्य पथ हो गया। और अब वहाँ पे सुभाष कुंद्रा का नाम कर्तव्य कुंद्रा हो गया। सुभाष का ही प्रोडक्शन का सुभाष बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक 2 मूर्ति, एक्चुअली एक नहीं 2 मूर्ति है, गुरु मूर्ति और दूसरा नारायण मूर्ति। और स्पीच दिया मोदी जी ने कि अगर हमने अपना देश जब शुरू किया था तब अगर हमने थोड़ा सा ऐसा सुभाष जी के आइडियल्स को लेके चले होते तो आज हम कहाँ पहुंच गए होते। मैंने बोला हमें पता कहाँ पहुंच गए होते, नाजी जर्मनी पहुंच गए होते और कहाँ जाते। पर बट टू बी फेयर हम पहुंच तो वही रहे हैं। हाँ, मोदी जी इज ट्राइंग, ही इज गिविंग अ शॉट। स्लो बट स्टेडी, यस, स्लो बट स्टेडी एलिमिनेट्स द रेस। गुड वन। देखो मैं ये कह रहा था कि आप ऐसे इमेजिनरी प्रॉब्लम्स कि इमेजिनरी एनिमीज के इमेजिनरी सॉल्यूशंस निकालते रहो। कॉलोनियल क्या है, कॉलोनियलिज्म से क्या हो जाएगा? लिटरली इट्स दैट आवर प्रॉब्लम। एक सेकंड, वो हटा दिया कॉलोनियल वाला, वो सब हटा दिया, और अभी क्वीन के मरने पे डे ऑफ मॉर्निंग भी कर रहे हैं। नहीं वो तो देख, वो मैं समझ सकता हूँ, उसके मैं साथ में हूँ। देख बीजेपी गवर्नमेंट है, कुछ तो उनको सावरकर जी के लिए करना पड़ेगा। हाँ, वो तो एग्जैक्टली ना, तो लेकिन बट फिर नैरेटिव्स आर टोटली ऑपोजिट हियर। देखो दिल में तो अभी भी दिल में है प्यार सावरकर है,
झूठ बोलूं मैं। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाई डू यू थिंक मोदी जी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव साउथ इंडियन पॉलिटिशियन साउथ इंडियन दैट द कंट्री हैज एवर हैड? साउथ इंडियन, साउथ ईस्ट, साउथ इंडियन। मोदी जी इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव। व्हाई डू यू गाइस थिंक? आपका सवाल ही बिकॉज़ ही इज सवाल में जवाब भी है ना, बिकॉज़ ही इज वेजिटेरियन। डू यू थिंक आंसर भी नो नहीं हुआ। पॉन्डिलेट में कोई बोलेगा नो मोदी जी इज नॉट, ऐसा कोई बोलेगा क्या? क्वेश्चन में ऑलरेडी है कि वो है, क्यों है ये बताना है तुमको। The reason is Modi ji is the only person from the north trying to learn. ये बीजेपी पौंडीचेरी के एक लीडर ने, जो पौंडीलिट फर्स्ट के वन ऑफ द ग्रेट थिंकर्स हैं, उन्होंने बोला है कि मोदी जी इज द मोस्ट South Indian of all North Indian politicians because he has tried to speak in Tamil, he has quoted Tirukkural, so Modi ji is the most representative. इनको कितना बेसिक बिच है यार ये लोग, सीरियसली कुछ भी नहीं चाहिए इन लोगों को, ये चाहिए कि बस उसने आके थोड़ा हमारे लैंग्वेज में एक वर्ड बोल दिया, इतना ही नहीं, क्या कर रहा है। और वो बंदा ये सब बोल रहा था कि तो अब देखा जाए तो मतलब पैराफ्रेज तो मोदी जी हिटलर को भी बहुत करते हैं। हाँ तो मोदी वो तो है, तो किसी ने डिनाई किया इस बात को शांत कि मोदी जी इज द मोस्ट एलिजिबल नाजी इन द वर्ल्ड, साउथ इंडियन मोस्ट नाजी रिप्रेजेंटेटिव इन द वर्ल्ड। तो ये भी बोला उसने कि मोदी जी इज आल्सो ब्रिंगिंग तमिलनाडु बैक टू इट्स रूट्स, मेक तमिलनाडु ग्रेट अगेन, तो बाय ब्रिंगिंग धार्मिक अगेन इन तमिलनाडु, मतांगा धार्मिक बना रहा है वो। अगर कोई इंसान सच में किसी एरिया को समझने की कोशिश करे ना, तो इट इज रियली कमेंडेबल और इट इज अ ह्यूज टास्क, ठीक है। और जैसे तमिलनाडु के बारे में मैं लोगों से पूछता, व्हेन यू थिंक ऑफ तमिलनाडु, आदित्य तुम तो वहीं से हो, तुम्हारा क्या जाने दो, बट व्हेन अ जनरल पर्सन थिंक ऑफ तमिलनाडु, व्हाट आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दे थिंक ऑफ? ये तो ठीक है, वो तो रेसिस्ट है, लाइक vegetarian, like all those kind of things, right? And then very I tell humid, them that, very hot. वो तो ठीक है, but then I tell them that only 3% of Tamils are vegetarian. They are like shocked. In fact, Tamil Nadu is less vegetarian than Punjab, exactly. Imagine that. दूसरा कौन सा था? दूसरा क्वेश्चन क्या था? Why is Modi ji India's सबसे welfare oriented government? एक सेकंड, तो मतलब रेवड़ी बांट रहे हैं फिर, तो इनको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टेक्निकली। है। तो मोदी इज द मोस्ट लेफ्टिस्ट ऑफ ऑल इंडियन पॉलिटिशियंस इन टर्म्स ऑफ हिज पॉलिसीज। ये भी आया है ढाले रे बाबा, हर में लेफ्ट बना देंगे मोदी जी को, अभी तुम रुको। मोदी और जी ये उन लोगों सुन ये उन लोगों ने ये भी बोला है कि एंकर ने, वो जो सेशन का एंकर था, पता नहीं कौन है वो ये जो तमिलनाडु बीजेपी वाले से बात कर रहा था ना, उसके साथ में उसका एक्सेंट भी साउथ इंडियन की तरह हो रहा था। व्हाई आर यू सेइंग लाइक दैट? मतलब वो ये कर रहा था, तो he was trying to like pander to that guy basically। और हाँ, ये जो सेशन था ना जहाँ पे ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे मोदी के लेफ्टिज्म को, वहाँ पे इनका ये क्रिटिसिज्म था कि देखो, हमको इन ग्रुप वालों को ही क्रिटिसाइज करना चाहिए, वी शुड नॉट लेट बैड फेथ एक्टर्स टेक होल्ड ऑफ द क्रिटिसिज्म स्पेस, we have to be the ones first criticizing this government, say। मोदी जी ने इतना कुछ किया है। I have a rhetorical question, Aditya. Why do you watch this? Fun, so much fun। भाई तेरे को अफेक्ट नहीं करता ये सब? तेरे को डिसअपॉइंट, डिप्रेस नहीं हो जाता तू ये सब देख के? इतने सारे लोग ऐसी बातों पे ताली बजा रहे हैं। आज सबको छोड़ो, तू एग्जैक्टली हाँ बता, ऐसा क्या करता है कि तुझे ये सब देखना पड़ जाता है? मतलब आई रियली वांट, ऐसे कि तू क्या हिरोशिमा के विक्टिम्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है क्या? ये तू देखेगा, तेरे को पर्सपेक्टिव समझ में आता है ना, तो तू हर आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए अगर तू समझे ही ना कि लोगों का इंटेलेक्ट, ये देख, पॉन्डिलिट फेस्ट उनका सबसे इंटेलेक्चुअल स्पेस है, ये तो तुम मानोगे। तू मुझे बता कि अगर कोई मेरे से, मैं अगर बैठा हूँ, मैं से जा रहा हूँ, मुझसे किसी ने बोला कि अरे तुम लेफ्टिस्ट है, मैं राइट विंग है, मैं तेरे को डिबेट करेगा, मैं बोला ओके, और फिर मेरे से बोले मोदी जी इज द मोस्ट साउथ इंडियन ऑफ ऑल नॉर्थ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मैं उसका हाथ जोड़ के चला जाऊंगा, बोला हाँ भाई एग्जैक्टली, तू रखिए देश, भारत माता की जय, बाय। मैं क्या बोलूंगा उसको भाई? एक मजा तो आता है ना, मतलब सुन के, पता नहीं कैसा हसीन दर चाहिए तेरे को, मेरे को समझ में नहीं आता है। बीजेपी में लीडरशिप के बारे में क्वेश्चन इसलिए नहीं करेंगे लल्लन टॉप टाइप के
के लोग, यू लाइक बीजेपी माइट चेंज 5 लीडर्स, 5 चीफ मिनिस्टर्स इन गुजरात, ठीक है, लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे उनसे, क्योंकि डिसाइसिव होता है जब बीजेपी चीफ मिनिस्टर चेंज करता है ना, तो इट इज अ डिसाइसिव मूव फ्रॉम दी, इतना डिसाइसिव होता है, भले ही एक साल में 4 बार करे, लेकिन डिसाइसिव होता है वो। इन बहसों की डिजाइन देख आपको हमेशा एक पक्ष का ही पलड़ा भारी दिखेगा और उसी का नियंत्रण भी जब कोई और करे। इनका लॉजिक मैं तुम्हें बताता हूँ, और ये बहुत ही इनका लॉजिक सिर्फ ये है कि बीजेपी तो इलेक्शन जीत जाती है ना, तो फिर बीजेपी से क्वेश्चन क्यों पूछना जो इलेक्शन नहीं जीत रहा जी। और ये सेम वही हम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हमारे सोसाइटी में हमें लगता है कि एजुकेशन को बहुत वैल्यू दी जाती है, बट एजुकेशन को वैल्यू नहीं दी जाती है, मार्क्स और डिग्री क्या है उस चीज की वैल्यू है, इस बात की वैल्यू नहीं है कि। और इसीलिए वेस्ट में जब इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं तो उन पे चीटिंग का भी लगता था, क्योंकि हमको इस बात से मतलब ही नहीं कि हम क्या लाइक एजुकेट क्या कर रहे हैं, हमको मतलब है नंबर क्या दिख रहे हैं हमारे और डिग्री क्या लग रही है हमारे नाम से। और सेम वही इनको मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, इलेक्शन जीतते हैं ना, बस बात खत्म। तो फिर इनसे कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं। और उसमें प्रॉब्लम भी है ना कि तेरा जो मीडिया 90% इज अपर कास्ट हिंदू, और इनके लिए क्या है कि मतलब प्रिविलेज इतना है कि ऑल ऑफ दिस इज जस्ट लाइक अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट, कि कौन बेस्ट इलेक्शन जीत सकता है, क्या एफिशिएंट मशीनरी बना है। और सेम चीज केजरू एंड टीम आल्सो डज, राइट, लाइक एफिशिएंट मशीनरी इज सपोजिटली समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ, एंड बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग टू दिस। दर्शन के लिए आए हुए हमको सनातन धर्म चाहिए और सनातन धर्म मोदी जी लाएंगे। महंगाई चलेगी लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें बस हमारे हिंदू धर्म से मतलब है। और मैं ये गारंटी देता हूँ 5 से ज्यादा आप फिक्स। आपके लिए हिंदू धर्म क्या है? आपके लिए हिंदू धर्म क्या है? बस राम मंदिर बनवाए, कितने सारे कार्य किए बीजेपी ने हमारे लिए, और पूरी जगह भगवा। तो ये क्या है? क्या करते हैं? मैं सीएस में, मेरी गवर्नमेंट जॉब है। आप फोर्स में अर्धसैनिक बल में हैं और यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग। यस। अरे मोदी जी को कुछ नया करना पड़ा, मोदी जी को एक बार तो गोली लेनी पड़ेगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला ना, वरना ये सब बोल मत ये सब गोली मेडिसिन। हाँ, कांग्रेस से शुरू करते हैं। तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ यार, ऑनेस्टली मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस बात से कि कुछ हो रहा है कांग्रेस में कुछ हो रहा है। कांग्रेस को न चाहते हुए भी मीडिया कवरेज मिल रहा है, मतलब ग्रजिंगली से ही, लेकिन लल्लन टॉप को भी जबरदस्ती मतलब 40 मिनट 1 घंटा बात करना पड़ रहा है। मतलब क्या कह रहा है लल्लेश, क्या कह रहा है लल्लेश? वही कि होंगे तो रिमोट कंट्रोल वाले, मतलब उस तरह। अच्छा, मुझे मतलब देखो, मैं तो इसके शो पे राजदीप को कैसे झड़का रहा है फिर वो आजकल? राजदीप को बेइज्जत करते रहता है कुछ भी। राजदीप जी आप तो डिनर विनर पे गए होंगे उनके साथ ऐसे। नहीं तो वही बोल रहा हूँ ना, तो राजदीप का वो क्या है, उसका स्टैंड क्या है? राजदीप का सेंटर स्टैंड है कि राजदीप खड़गे के बारे में भी अच्छा चीज बोल रहा है कि बहुत सालों से लॉयलिस्ट सिर्फ नहीं रहा है, बहुत ऐसे ग्रास रूट लेवल से निकल के काम किया है, ये सब बोला है। तो लेकिन द्विवेदी बोलते हैं आप पते की बात बताइए, वो लॉयलिस्ट है या नहीं, ये आप ठीक ठाक से समझाइए हमको। ऐसे इस तरह की तुम लोगों ने कभी जिमी किमेल देखा है? हाँ, जिमी किमेल में उसका एक खड़ा रहता है किनारे, देखो वो मैक्सिकन इंडिया में है ना जिमी कमल। नहीं सुनना, वो मैक्सिकन खड़ा रहता है ना किनारे, जिसका जिमी किमेल कभी कभी मजाक उड़ाता है, गियर्मो, जो मुझे माइल्डली रेसिस्ट लगता है कभी कभी वो पूरा एक्ट। बट बेसिकली लल्लन टॉप का लल्लेश अपना जिमी किमेल और राजदीप उसका ये हालत होगी इस देश में। लल्लेश ने एक और चीज बोला, द्विवेदी ने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि ये भारत जोड़ो यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे थक गए थे एक पॉइंट पे और उनको प्यास लग गई थी, तो राहुल गांधी ने खास उन्हीं को पानी पिलाया बोतल देके। मतलब तो उससे समझ में आता है कि वो कितने खास हैं। अरे खास तो गहलोत भी थे यार 80 साल का बूढ़ा है, वो थक गया है, उसको पानी दिया, इसमें क्या नहीं भाई? ये वो देश है, सुनो, ये वो देश है जहाँ पे 3 दिन तक न्यूज थी कि मोदी जी ने एक तो ना वो, भाई पब्लिक कितनी बेवकूफ हमारे देश की, मुझे बताओ। बहुत ज्यादा, इसका आंसर यही है। इसका भाई मोदी ऐसा आदमी है, वो एम्बुलेंस का बोल रहा है ना, मोदी ऐसा इंसान है कि मोदी हमारे कैंपस में कॉन्वोकेशन के लिए आया था, तो उसने जिन लोगों का कॉन्वोकेशन है उन्हीं को लिमिटेड नंबर्स में कॉन्वोकेशन हॉल में एंट्री दिया था, एंड दिस इज दैट पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो वी हैड टू गो बाय कूपन्स, गेट टिकट्स to our own convocation because they wanted to cleanse the perimeter. Convocation hall में limited entry देना था, तो first come first serve चल रहा था, और हुआ है कि एंड में लास्ट डे तक enough people didn't take it, so the hall wasn't full. तो फिर मेल करके बोल रहे थे और भी लोगों के लिए जगह है, आ जाओ।
तो ये वो आदमी है, तुमको लगता है इसके कैवलकेड के लिए एम्बुलेंस तक के लोग रास्ता छोड़ देंगे? और ऐसा भी नहीं है ना, क्या मैं तो सिंपल लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी है कि वो साथ में चल रहे होंगे तो दे दिया होगा ना भाई। इट्स नॉट अबाउट जस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन ना, इट कुड हैव बीन एनी पर्सन। एकदम से कोई बूढ़े पर्सन को एकदम से थक गया, प्यास लगी तो नहीं देगा क्या कोई आदमी? हाँ, मतलब नहीं तो उससे ये समझ में आता है कि वो राहुल गांधी के कितने करीबी है। हाँ, अच्छा, नहीं, और वो इसलिए वो रिमोट कंट्रोल भी होंगे फ्यूचर में जाके। अच्छा, मतलब ओके, जस्ट बिकॉज़ पानी दे दिया तो पानी दे दिया, क्योंकि बेसिक डिसेंसी जो हमारे देश में है, बेसिक डिसेंसी वो है, वो नहीं है। जैसे ये पूरा एम्बुलेंस और मोदी जी वाला है ना, बिकॉज आपके खुद के पास नहीं है तो फिर आप अज्यूम ही करते हो कि नहीं है। मोदी जी ने एम्बुलेंस के लिए दे दिया रास्ता, तो मतलब पूरे न्यूज चैनल में, ये पूरे न्यूज चैनल बीजेपी वाले। एक सेकंड, वो रास्ता ऑलरेडी था वहां। ठीक है, मतलब इवन फोटो में दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी की कार स्पेशली खिसकी और वहीं से, मतलब वो जा रही है 3 लेन दूर से कार, एम्बुलेंस नहीं, मोदी जी ने कार रोक के रोड के किनारे कार खड़ी करवा दी, एम्बुलेंस को जाने दी। तो मुझे ये बताओ, मोदी जी या कोई भी दुनिया का जो लीडर होता है उसका कैवलकेड होता है, आगे कुछ कार होती है, पीछे कुछ कार होती है, बीच में एक कार होती है जिसमें अपना नेता होता है, ठीक है। और इंडिया में स्पेशली, और हर जगह, नॉट जस्ट इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जैसा आदमी जब निकलता है तो रोड जो है 1-1 घंटे पहले खाली करवा दी जाती है। इनफैक्ट इसके बारे में आप कंप्लेंट सुनोगे, लाइक न्यूयॉर्क में, डीसी में जब यूएन होता है कि कितनी प्रॉब्लम हो जाती है इन वजह से, तो ऑब्वियसली इंडिया में भी ये होता है। तो पहली चीज तो तुम मुझे ये बोल रहे हो कि वो रोड जहां से कैवलकेड खाली करा दिया गया था वहां से कोई एम्बुलेंस निकल रहा था। दूसरी चीज तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मोदी जी जो बीच में कहीं होंगे, उनको पता चला कि 4 कार के पीछे एक एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, ठीक है, और उसके ऊपर फिर कोई और था जो मोदी जी की कार के पीछे से बोला नहीं रिकॉर्ड कर लेते, एएनआई को देना पड़ेगा ये वीडियो, एएनआई को अच्छा लगेगा। मतलब इतनी सारी चीजें हुई है तब जाके ये गुड लाइक समैरिटन दिखे। इस पे मेरा एक सवाल है कि इसमें मोदी जी का खुद का इन्वॉल्वमेंट कितना रहता होगा? मतलब मुझे नहीं लगता मोदी जी का कुछ होता होगा कि उसके आसपास में जो लोग हैं ना, उन्हें अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर। तुम लोग ना बहुत छोटा सोचते हो यार, ये एम्बुलेंस कुछ नहीं है ये। When is Modi ji appearing shirtless on a horse with a trishul? हॉर्स ने भालू होना चाहिए ना। When is that happening? वहां पे भालू है तो इंडिया में कुछ पुतिन ने तो हॉर्स तो बहुत इस्लामिक हो जाता है भाई। चीता नहीं होगा चीता नहीं होगा क्या? हाँ, चीता ही तो पिता है, मर जाएगा चीता। मोदी जी का शेप नहीं है, फिजिकल शेप वो तो राइड है चीता, इसीलिए घोड़ा। वो सर ऐसा तुझे लगता है कि मोदी जी का शेप नहीं है, ठीक है। मोदी जी का बहुत अच्छा शेप है। मोदी जी के तुम आदि पुरुष वालों को बुला लो तो मोदी जी के एब्स भी होंगे, जैसे प्रभास के एब्स बनाया ना, मोदी जी बना दिए ना पहले योगा वाले हॉटस्टार ने, योगा वीडियो पे। दे एब्स नहीं बनाए, इतना भी नंगापन नहीं करेंगे लोग। हाँ, मतलब पब्लिक बेदाश है, लेकिन ऊपर से कपड़े भी हैं। अच्छा, कल को अगर ऐसा हो कि कुछ ऐसा लगता है मोदी जी के एब्स नहीं है, इस सवाल के जवाब देने में जेल हो सकती है मुझे, तो समझ रही है? हाँ, मोदी जी के 16 पैक हैं, मोदी जी के 2002 पैक हैं। डार्क, बट तू ये सोच कि कल को ऐसा करे कि ऐसा कहीं मोदी, अभी बारिश में आएगी फोटो बारिश में, तो मोदी जी को भी मंदाकिनी बनना ही है, राम तेरी का मैली। ठीक है, बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। भाई बंदा जिसने मूवी बनाई उसका नाम है ओम राउत। अगर वो नाम ओम रायट कर देता तो बहुत एक्यूरेट हो जाता आज के हिसाब से। है ओम भी और राइट भी। होता ये है कि तुम जब इतने सारे मूवीज बना लो ना जहाँ पे तुम्हारे मुसलमान कैरेक्टर्स विलन है और सुरमा खरीद लिया हो तुमने, तो लगाते अब वो बजट बचाने के चक्कर में तो तुम्हारा एसोसिएशन ही ऐसे हो जाता है कि विलन मतलब मुसलमान ही होना चाहिए। तो क्रिएटिव डायरेक्टर्स ने भी सोचा होगा सुरमा तो लगाना जरूरी है सर, ऑडियंस को कैसे समझ में आएगा। मूवी शुरू हो गई, पहला सीन ऐसा दिखाएंगे जैसे श्रीलंका, ऐसे कैमरा पैन हो रहा है, दिखा रहे रावण नमाज पढ़ रहा है अधर्म का विध्वंस करने। वो अभी पॉज कर, वो ये वो भक्तों को किससे प्रॉब्लम है पता है? मोदी जी वाली मोदी जी है, मोदी जी प्रकट हो रहे हैं, मोदी जी बचाने के लिए उनको मोदी जी आइडिया देंगे। वहां पे अगर पत्थर फेंक दोगे तो तैरने लगेगा। हनुमान में मुझे एक हनीफुद्दीन वाला फील दे रहा है। एग्जैक्टली, हनुमान वही ना, ये भी था ना कि मूंछ भी नहीं है। कर दे, ये आवाज नहीं सुनना है मेरे को।
नीचे जाओ, कमेंट्स देखें भाई, IMAX में इसका जो इम्परफेक्शन है और घटिया इतना लगेगा। हाँ वही ये पहला। अच्छा ये तो टी सीरीज ने ही कर दिया। वॉइस ऑफ शरद केलकर इज अनमैच्ड, इट गिव्स गूज़बम्प्स आ गए इनको। शरद केलकर्स वॉइस डिजर्व फॉर प्रभास इन हिंदी मूवीज। उपकार महेश्वरी, assume this 1 million likes are for Sharad's voiceover. शरद केलकर फैन आर्मी है क्या कोई? केलकरियंस। शरद केलकर्स वॉइस फॉर प्रभास, इसके लिए वसुंधरा राजे फैन क्लब वाली फील आ गई मुझे। When it comes to friendship and commitment, I want this to be real. What does this mean? Sharad Kelkar and Prabhas friendships. Prabhas killed his own image by entering Bollywood. जागो मेरे भारतवासियों। कैसे मोदी जी कैसे देखे कि बारिश में भीग गए मोदी जी, कुर्ता उनका हो गया और अंदर से ऐसे ट्रांसपेरेंट में ऐसे एब्स दिख रहे हैं। पब्लिक मान लेगा कि मोदी जी के एब्स हैं, भले बाकी सब फोटो उनका पेट ऐसे निकला हुआ हो, पब्लिक उस फोटो मान लेगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि लाइव रैली है अगर मोदी जी करने के, बारिश नहीं हो रहा है लेकिन फोटो अब चाहिए तो वो लेके जाएंगे। वो सिनेमा सेट में होता है ना बारिश कराने वाला, वहां करवा रहे हैं और उसका वीडियो आ गया। लेकिन जो लोग गए देखे बारिश नहीं हो रहा है, सावन की फिर वो पब्लिक मुकेश खन्ना और अशोक पंडित लोग इतना तो करा ही सकते हैं। हाँ तो नीचे से क्राउड जो देख रहा है ना, वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये नकली है। वो बोलेगा कि सही तो है, हो रहा है हो रहा है। हाँ। और कोरा में 4 आंसर आ जाएंगे साइंटिफिक प्रूफ के साथ कि कैसे माइक्रो एनवायरनमेंट। और एप्स जो होंगे वो हो सकता है किसी कॉकेशियन के भी हों, मतलब then also it will be it won't, even the skin color doesn't have to. Caucasian के abs Alsatian के मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें वो जब शक्ल जो abs पे क्रॉप होके लगेगी तो उसमें वो बॉर्डर भी दिख रही होगी लोगों को ना। मान ले कि देख ऐसे मोदी जी रात को खड़े, पीछे का पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है लेकिन abs वाले पार्ट का बैकग्राउंड व्हाइट है ना, तो भी लोग। सबसे पहला मोदी फोटोशॉप क्या था? वो वाटरफॉल में मोदी का चेहरा है। हाँ नायग्रा में, वो भी तो हाँ नायग्रा में, वो भी तो लोग खुद मान ही रहे थे। मतलब लोग तो मोदी जी पेट में अगर पाव बांध के चले जाए ना, पब्लिक वो भी बांध ले एक लादी। वाह मोदी जी है यार, मानते पब्लिक फुल। मतलब जिस तरीके का भरोसा है ना पब्लिक को, और उस वजह से मतलब जैसे आज मैंने everyone else is very eager to please you. Knowing Modi, I know one thing that if he's not in on the plan ना, he's such a heartless fuck कि वो बोलेगा क्या रोक उसको एम्बुलेंस को। देखा है ना उसने ऐसे लोग गिरते रहते उसकी रैली में उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको वो अगर नहीं होगा प्लान में तो फिर बहुत मुश्किल है। नहीं प्लान they might be running it past his ये checks and rules का ये creative team। मोदी जी इस बार सोच रहे हैं कि आप जब जा रहे होंगे तो एक एम्बुलेंस निकलवाते हैं, आपको रुकना है, एम्बुलेंस को जाना है, समझ रहे हैं? तो मोदी का एक क्रिएटिव टीम होगा, वो जाता होगा लेके आइडियाज लाइक लेट मी बाउंस द आइडियाज ऑफ मोदी जी। वो मोदी जी को बोला तीन अच्छे आइडियाज लाना मेरे लिए, मैं पिक करूंगा उसमें से क्या होगा, ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने बोला एक होगा एम्बुलेंस, एक होगा कि मोदी जी आपके कैवल कार्ड में एक औरत को दौड़वा देते हैं, उसका एक्सीडेंट करा देते हैं और फिर आपके साथ उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। बोलते नहीं यार कार में कौन बैठाऊंगा, गंदी हो जाएगी कार। नहीं मोदी जी को 3 ऑप्शन दिए थे, 2 उनमें से जेन्युइनली बहुत अच्छे थे कि आप जाके सही में कुछ करिए अच्छा। वो ऐसा नहीं हो सकता मोदी जी, नहीं आई डोंट बिलीव इट, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। आई डोंट थिंक कि ये लोग एक कोई जेन्युइनली अच्छा कुछ ऑप्शन में भी रख सकते हैं। हाँ, ये कुछ ऐसा नाटक नौटंकी जैसे ही कुछ होगा। मोदी भी चलेगा क्या अभी देश में, मतलब देश भर यात्रा करेगा क्या? नहीं रे पागल है क्या जरूरत यात्रा करने की, देश उनके लिए यात्रा करता है। मैं बोल रहा हूँ वो करना शुरू करना, लोग बिछ जाएंगे। हाँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, मोदी अगर करने लगे तू मुझे बता, तू like can you even imagine Modi walking on a street without security? Like वो अपने मतलब तूने आखिरी बार मोदी के पास एक आम आदमी को कितने पास देखा है? नहीं मजाक मतलब वो आम आदमी के सामने ना बहुत अजीब बिहेव करता है, एज इफ ही हैज नेवर मेट अ ह्यूमन बीइंग एवर इन हिज लाइफ ऐसे। तो होता है ना वो सारा इवेंट होता है जहाँ पे बोलता है कि बीजेपी कार्यकर्ता से मिलने गया या किसी से, इवन फॉर दैट मैटर वो स्पोर्ट्स पीपल से मिलता है, जब जो अजीब तरह से लोगों को पकड़ता है पीछे से, मतलब ये सारा चीज ही तो करता है भाई। ही हैज नेवर मेट अ ह्यूमन बीइंग लाइक, आई डोंट थिंक ही हैज नॉर्मल ह्यूमन इक्वेशंस
वो होता है ना कभी अगर जू में एक जानवर अगर बड़ा होता है तो उसका सिर्फ एक मतलब एक प्लेट से जो रिश्ता है, इतने पीआर पूरी की पूरी मिनिस्ट्री पीआर में लगी रहती है, पूरा मीडिया पीआर में लगा रहता है, लेकिन फिर भी एक वो जेन्युइन वो नहीं आ पाता है ना, बिकॉज वो है ही नहीं। मतलब वही ना, मैं वही बोल रहा हूँ, जू में अगर तू किसी जानवर को पालता है उसका एक प्लेट से जो रिश्ता होता है ना, खाने से सिर्फ खाना दिखता है प्लेट में। मोदी जी को हर इंसान में वोट दिखता है, बस उतना ही है। वो लीडर्स के साथ भी नहीं वैसा इंटरेक्शन दिखता ना, वो भी तो ऑकवर्ड ही रहता है। मतलब तुम जब ये चले जाते हैं हर जगह है भाई, लीडर तो खुद ऑकवर्ड वाले ही हैं, मतलब वो ऑकवर्ड होना पसंद करते हैं। अरे नहीं, मतलब इवन जो सेलिब्रिटी वंस जो हैं, मतलब नड्डा को भी भगा देते हैं, हटा दिया। नहीं, मैं तो ग्लोबल की भी बात कर रहा हूँ ना, जो ग्लोबल इवेंट्स में जाके भी मतलब वो दिखता है ना शक्ल। एक तो वो एंगेला मर्केल वाला भाई अंजेला, भाई मुझे एक चीज बताओ, हेलो अंजेला, कांग्रेस का कोई जो नया प्रेसिडेंट बनेगा वो रिमोट कंट्रोल होगा। हाँ, जेपी नड्डा के मोदी जी को रोज माँ की गाली बकता है क्या? डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूँ। हाँ भाई, जेपी नड्डा बना कैसे? एकनाथ शिंदे की बात की तो उद्धव ठाकरे की बात नहीं करोगे? उद्धव ठाकरे इज कंटिन्यूइंग टू बी ऑन दिस प्रोग्रेसिव पाथ। इंडिया में ऐसा कोई मार्केट नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों कर रहा है उद्धव ठाकरे। मतलब अभी अगर उद्धव ठाकरे थोड़ा कम भी हो जाए तो उसको माफ कर दूंगा। मुझे नहीं पता भाई, दशहरा स्पीच में दी, दशहरा स्पीच थी मेरे भाई उद्धव ने, और उसमें फुल ऑन स्पीच। To give context, every year Shiv Sena has this huge Dasera rally since Bala Saheb's days, but never has a Dasera rally seen. बोल दे। हाँ, मतलब बेसिकली उद्धव लाइक बिल्किस के गद्दारों को गोली मारो सालों को टाइप का, समझ रहा है तू? ये सब बातें करके आया कि ट्रेटर्स तो वो हैं जिन्होंने बिल्किस को इंसाफ नहीं दिया। तू समझ रहा, उद्धव ठाकरे ऐसी बातें कर रहा है। और अभी मुझे बता कि अभी तो कोई गवर्नमेंट बचा के रखना है, महाविकास आघाड़ी का कुछ भी मजबूरी है, कुछ भी नहीं है अभी। कुछ भी नहीं है। कुछ भी क्यों, क्या हो गया? लिबरेट हो गया है बंदा, मैं बोल रहा हूँ। अब वो लिबरल से लिबरेट हो गया। हो सकता है कि क्लोजेट लिबरल था, अब बस नथिंग टू लूज वाली, नथिंग टू लूज उसमें आ गया ना, नथिंग टू लूज, ऑल गन्स ब्लेजिंग। मतलब इतना तो राहुल गांधी भी इतना नहीं कर पाता है जितना। क्यों बताएंगे? जैसे हम लोग पहले भी बोला है ना ये चीज कि उद्धव ठाकरे को कौन मतलब ये बोल सकता है कि तू हिंदू नहीं है? अरे अब तो बोल सकते हैं ना, इतना बोलते, अब तो बोलते होंगे। मैंने बोला ना, मेरे को बस रह की एक ही बात याद आती है, अपन ने एक एपिसोड किया था मोदी जी की बायोपिक, जिसमें मोदी जी आते हैं बाला साहब से मिलने और किनारे से सीन में दिखाते हैं कि उनका बेटा कोकेन मार रहा है। ये इमेज है उद्धव की। तो रास्ता भटक गया जो बेटा, अभी भी बहुत ज्यादा बोला उद्धव ठाकरे के स्पीच में। ही यूज्ड द वर्ड मुन्ना भाई टू रेफर टू राज ठाकरे। हाँ, क्या बोला बता थोड़ा, क्या बोला? कुछ ऐसे नहीं बोलते, इन लोगों का टीम है ना ये मुन्ना भाई और सर्किट इज दिस गाय एकनाथ शिंदे। ये महाराष्ट्र में हो सकता है ऐसा रेफरेंसेस, लाइक वेरी यूनिकली बॉलीवुड रेफरेंसेस। दोस्तों अभी वो हुआ ना, अच्छा वो हम डिस्कस कर चुके हैं ना शायद, कि हेलो बोलने की जगह वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। वो भी महाराष्ट्र में, वो तो आते ही मतलब नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, आई थिंक ये महाराष्ट्र ने शुरू किया, ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। मतलब जैसे ही शिंदे आया, मतलब द वे वी नो बीजेपी गवर्नमेंट इज बैक इज थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। प्रायोरिटीज चेंज हो गई। एक तो एडवेंचर स्पोर्ट बनाया, दही हंडी को कुछ तो स्पोर्ट डिक्लेयर किया, फिर दूसरा ये फोन कॉल हेलो बोल के नहीं उठाने का, वंदे मातरम बोल। मतलब तो सोच रहा है अपना काम जस्ट कि हम कुछ काम कर रहे हैं जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी फेल दो, कुछ भी रैंडम। तो भाई मतलब और उसको गोइंग टू ऑफिस एंड देन जस्ट कुछ तो भी कर रहा हूँ कि मतलब मेरा काम कुछ और है, लेकिन मैं वहां जाके कैफे की चेयर वेयर लगा के आ गया, मैंने बहुत काम किया। जो तू बोल रहा है ना, सच में इनका ऐसे ही है, क्योंकि बीच में जब जावड़ेकर जब पहला एनवायरनमेंट, कहाँ जावड़ेकर आजकल सही नहीं आता जावड़ेकर, तो मैं ही याद करता हूँ ना ऐसे लोगों को। कहाँ है जावड़ेकर यार, अब मुझे गूगल करना पड़ेगा क्या चल रहा है प्रकाश जावड़ेकर, मिलती है कि नहीं? एनवायरनमेंट मिनिस्टर था ना, तो उसने 1 साल के बाद वो अचीवमेंट गिनवाना होता है ना, तो उसने बोला मैंने एक दिन में 400 फाइलें क्लियर की। भाई तू एनवायरनमेंट मिनिस्टर बना है उसके लिए नहीं, यू आर सपोज टू एक्चुअली गो थ्रू एंड सी वेदर दिस प्रोजेक्ट्स आर एनवायरमेंटली सेफ, वेदर क्लियरेंसेस हैव बीन ऑब्टेन्ड। मैंने सबको क्लियरेंस दिया एक दिन में, मतलब दिस इज हाउ दे थिंक। दिया मतलब एनवायरनमेंट मिनिस्टर का काम ही ये होता है कि एक्चुअल में देखना कि ये प्रोजेक्ट का क्या रैमिफिकेशंस है, लेकिन उतना सब नहीं सोचता है। पागल है क्या तू? ये कैसी बातें करते हो तुम लोग? कभी मुझे समझ में नहीं आता। तुम लोग वही इंडिया है ना।
सेम ही दिख रहे ना अपन। नहीं, लोगों को यही प्रॉब्लम थी ना जयराम रमेश से। हाँ कि अर्बन नक्सल रोक देता है प्रोजेक्ट। अरे भाई, लेकिन दैट इज द होल पॉइंट। डिक्टेटर चाहिए इनको 10 साल के लिए, नेताजी बैठे हुए कब बुलाएंगे आ नहीं पा रहे हैं। अरे उससे मेरी बात सुनो, जावड़ेकर कहाँ है आजकल पता है? बीजेपी ने जावड़ेकर को केरला का इंचार्ज बना दिया। भाई कुछ तो किया उसने, मोदी की चाय में नमक डाल दिया मेरे को लग रहा है। केरला उनका वो होगा ना, पनिशमेंट पोस्टिंग होता होगा। वही तो इसलिए तो कह रहा हूँ इसी तो कह रहा हूँ चीज हो जाएगी, लेकिन काला पानी बोलने वाला था बोलने वाला क्या था, अब तो बोल ही दिया है। गाइस 1 मिनट के लिए ये बात नहीं करोगे क्या? ये लिबरल वेस्टर्न इस्लामो कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी जिसने प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर को नोबेल प्राइज के पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। तू सोच रहा है नोबेल प्राइज बैन होने वाला है इंडिया से बहुत जल्दी। बैन मुझे ये बताओ कि भाई उसके बाद तूने रिएक्शन देखे इन लोगों के? आलू टिक्कू सिंह बोलती अरे ये सब क्या, ऑस्कर को भी डाल दिया उसने। ऑस्कर, नोबेल, पुलिट्जर सब कि ये सब तो ऐसी उनको है, ये ब्रिटिश कॉलोनी से आप तारीफ करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो उसके नीचे किसी कमेंट किया अगर आपको मिलेगा तो आप मना कर दोगी क्या? बोलती हाँ मैं मना कर दूंगी। अच्छा, उसको पूरा यकीन है। मैं भी मना कर दूंगा। मैं भी मना कर दूंगा। फैक्ट चेक हो रहा है। फैक्ट चेक जैसे ही होगा हम इसकी पुष्टि कर पाएंगे। नोबेल मना करने से मुझे याद आया, तुम लोगों ने ये न्यूज पढ़ा ना कि इंडिया में ऑन अ डे व्हेन भटनागर अवार्ड to give context is the biggest science award, right, in India. So the day when Bhatnagar Award was supposed to be announced, awardee was the day they announced it, sadistically they came up with this notification which said that इस साल इतने सारे award cancel, और मोदी जी बोल रहे हैं कि वो उसके बदले वो खुद अपना लाएंगे विज्ञान अवार्ड कुछ, तो which will be the equivalent of a Nobel, मतलब खुद ही बोल दिया कुछ नहीं, और आज से ही मिल रहा है। We will announce something which will be on par with नरेंद्र मोदी स्टेडियम लॉर्ड्स सीधे नोबेल। और वो करेंगे क्या कि वो अवार्ड देंगे अपने, मतलब भटनागर अवार्ड तो फॉर एग्जांपल इसको नहीं मिल सकता है ना, बाबा रामदेव को तो नहीं दे सकते, बट कुछ करेंगे नया लॉन्च जिसमें मिल जाएगा उन सबको। पब्लिक चॉइस अवार्ड्स इन साइंस। तो नोबेल प्राइज फालतू, वी विल ऑनर ओनली द विज्ञान समथिंग अवार्ड। तो होगा काउबेल प्राइज होगा, काउबेल पीस प्राइज, नोबेल अवार्ड। इग्नोबेल तो होता ही है ना, इग्नोबेल तो मोदी जी को मिला है, इग्नोबेल मोदी जी को मिल चुका है। नहीं, बट इग्नोबेल हैज एक्चुअल साइंस, मतलब इग्नोबेल के जो I know, हाँ। Not like junk नहीं होता है, मतलब junk होता है, मतलब like कुछ revolutionary, मतलब relevance नहीं होता है इसका, useless science, but it is actual science, मतलब it is robust science, मतलब in that। तुम लोग को लगता है ना मेरे को सिर्फ क्रिकेट के अलावा किसी का ट्रिविया नहीं पता रहता। अब मैं तुम्हें इग्नोबेल से याद है एक फुटबॉल ट्रिविया। तो ये जो मैनचेस्टर सिटी के ओनर्स हैं उनको भी मिला था, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैनचेस्टर सिटी का शायद एतिहाद इज द स्पॉन्सर, तो उन्होंने एतिहाद स्टेडियम बनाया, बट Etihad in Arabic means United, so they got that. मुझे लगा कि तू फुटबॉल ट्रिविया से दम लगा दे गोल के बारे में कुछ बता। नहीं, दन गोल, तूने लिरिक्स गलत कर दिया। Can you edit this please? Sorry. Clearly it is not a movie age हो रहा है, age नहीं हो रहा है, धन गोल पुराना हो चुका है। That is how you refer. जैसे होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है दोस्तों भाई। लेकिन मैं तुमको एक चीज बताना चाहता था, तुम लोग नोबेल की प्राइस की बात से बहुत जल्दी वो निकल गए, पर महेश विक्रम हेगड़े को जानते हो, पोस्ट कार्ड न्यूज वाले? ऑफ कोर्स। उन्होंने मार्च 2020 में ट्वीट किया था, मार्च 2020 सेकंड वेव के पहले, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ट्वीट, व्हेन वर्ल्ड इज सफरिंग द वे मोदी जी सेवगार्डेड इंडिया फ्रॉम कोरोना वायरस इज एग्जाम्पलरी एंड फॉर दिस रीजन ही विल डेफिनेटली गेट नोबेल प्राइज। पनौती की डेफिनेशन देख रहा है, मार्च में किया था, फिर अप्रैल में क्या हुआ? He has blessing of 131 करोड़ इंडियंस, जो कि फिर बाद में कम होके 128 करोड़ हो गए, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इस बात तो शुरू में टेक स्क्रीनशॉट और नीचे इस बात को लिख के रख लो। तो मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया, लिख के नहीं रखा मैंने, आई एम सॉरी, बट तो अभी क्या बोलेगा ये बंदा? क्या बोलेगा, मतलब ये लोग का वही है ना, वही तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, नहीं चाहिए भी। अगर मोदी को मिले तो वही अवार्ड बन जाएगा, मतलब वर्ल्ड फेमस फिलिप कोटलर। कभी अच्छा तुम लोगों ने एक चीज देखी क्या? आगे पीछे कभी फिलिप कोटलर किसी ने जीता ही नहीं।
वो एक ही अवार्ड है, एक ही साल है, उसके बाद से किसी को फिलिप कोटलर नहीं मिला। कुछ नहीं, फिलिप कोटलर को भी नहीं पता है। फिलिप कोटलर को बाद में वो किया गया, बाद में मालूम पड़ा कि हाँ, उसको फिर बाद में बोलना पड़ा नो 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 यस, उसको मतलब करना पड़ा मोदी जी का मान रखने के लिए। तो सोच वो बोल देता है कि क्या ये फकौल। अमित भाई भेजा होगा दरवाजे पे आदमी, कोटलर बस बोलना है कि तुम्हारे नाम का अवार्ड। हथौड़ा, मैंने कहा ना सर्किट है वो, एक्चुअली अमित भाई सर्किट है और मोदी जी मुन्ना भाई है। और अगर तुम इस लेंस से दुनिया को देखोगे ना तो इट विल मेक सेंस, सब कुछ सेंस करेगा फिर आपको। नहीं वो तो वो है ही ना, नायक के अमरीश पुरी और कल्लू मामा तो है ही ना। अच्छा तो ये दोनों दे इवन मैच द। तो योगी क्या है? अरे ये मूवी यूनिवर्स बनता है, मेटावर्स समझते हो तुम? हाँ तो योगी क्या है? भक्ति वर्स है ये। इसमें है एक और सुपर योगी, इनका वो है इट्स ऑल अबाउट द फैमिली, सारे परिवार। अलग अलग कैरेक्टर्स हैं इस पूरे मेटावर्स में यार। अपन ने कभी मतलब हर किसी की एक अलग अलग तरीके की सुपर पावर होती है, ठीक है। अभी जैसे ये क्या चल रहा है आजकल, एक नया चल रहा है कि मैंने देखा कि क्रिस गेल ने ट्विटर पे फोटो डाली नवरात्रि की। हाँ परेशान मत हो निशान, तुम्हारे चेहरे पे जो परेशानी है परेशान मत होने की जरूरत नहीं है। क्रिस गेल ने डाला शुभ नवरात्रि ऐसा कुछ तो भी करके, और उसको साध्वी प्राची ने रिट्वीट किया। साध्वी प्राची ने व्हाट इज गोइंग ऑन, उसको को ट्वीट किया और कहा कि भारत का कुछ तो भी परचम लहरा रहा है टाइप का, समझ रहा है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, गुड। फिर घर में एक डांसिंग पोल भी है, पता है ना। और क्रिस गेल दवा के बीफ खाता है, पता है ना। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। और क्रिस गेल जैसे लोगों के लिए, मतलब रेस के लोगों के लिए साध्वी प्राची अपने घर पे क्या बोलती होगी ये भी पता है ना तुम लोग। हार्ड आर के साथ बोलती होगी वर्ड्स, बट हाँ। और उसके बाद दूसरी तरफ साध्वी प्राची रीट्वीटिंग क्रिस गेल is the timeline we are living in, yes, but my point is कि उसकी दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ये जो नुपुर आदित्य का जो बड़ा भाई है, ये सब लोग ट्वीट कर रहे हैं कि गरबा मीन्स गर्भ, एंड गर्भ बिकॉज वी सेलिब्रेट द वूम्ब ऑफ मदर दुर्गा, गॉडेस दुर्गा, बाय डांसिंग अराउंड इट। सो इफ मुस्लिम्स वांट टू पार्टिसिपेट इन इट, दे फर्स्ट हैव टू एक्सेप्ट गॉडेस दुर्गा एंड ओनली देन दे कैन पार्टिसिपेट। तो मैं बोलता हूँ कि भाई तो क्रिस गेल कर रहा है क्या ये सब एक्सेप्ट? हाँ कर रहा है सनातनी। हाँ क्या चल रहा है ये, मतलब क्रिस गेल इतना ऐसा इंसान है, क्रिस गेल को पता भी नहीं होगा ये सब का। क्रिस गेल का डांस भाई मुझे नहीं पता था। क्रिस गेल का असली नाम कृष्ण गोयल है। हाँ वही नाम है, कृष्ण गोयल। पर मुझे नहीं पता था ये गरबा और ये सब उनको भी नहीं पता था। आनंद नगराथन को भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, एक हफ्ता पहले तक। उनको अभी भी नहीं पता है। ये बैकवर्ड एस लॉजिक ये लगाते हैं, ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये है कि भाई कि अपने आपको अम्बेडकराइट बोलता था यार कुछ साल यार। वो आदमी मेरे को पक्का पता है कि वो आदमी खुद नहीं ये सब मानता होगा। अरे मैं बता He just wants to, हाँ। अगर उसके ऊपर आई ना कभी बाय चांस कुछ चमत्कार हुआ, कुछ टीम चेंज हुई, कुछ हुआ, वो निकल लेगा, भाग जाएगा सीधे, भाग जाएगा मुझे। सॉरी हाँ, तो क्या बोल रहे हैं रंगा अंकल? रंगा अंकल क्या बोल रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। रंगा अंकल ने बोला गरबा सेलिब्रेट द वूम्ब और गरबा हिंदूज डांस अराउंड। एक तो ये एथीस्ट था ना ये बंदा, ये सब। हाँ ये एथीस्ट, वो अभी भी एथीस्ट बोलता होगा। तू उससे बात करो, बोलेगा कि इसको वो इंडियन ऑयल के उसमें भी शिवलिंग दिख रहा था एक बार, एक फोटो में उसको भी दिखा। हाँ अरे उसने ब्लॉक कर दिया भाजपा के अकाउंट को भी। भाजपा को भाई तो भाई इसका स्क्रीनशॉट डालो ना। क्या तो बोलता हूँ कि मतलब हमें गर्भा हो गया। excel.exe। अरे उसने ब्लॉक कर दिया है भाजपा के अकाउंट को। अरे हाँ तो उसका स्क्रीनशॉट डालो ना। कहाँ पे? कहाँ डालो? ट्वीट कर। कैसा ट्विटर अकाउंट चला रहा है भाई तू? बहुत पहले। लिसनर्स प्लीज देख रहे हैं आप। हाँ, और उसके बाद आप लोग बातें करते हैं हमसे, बोलते हैं कि रेगुलर एपिसोड नहीं कर रहे हो आप, ये और ये तो हालत है हमारी। क्या करूं पूछता है बंदा हमारा। उसको क्यों ट्वीट करूं कि उसने ब्लॉक किया है? अरे लोग करते हैं ऐसा यार, ये फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स समझता है। रंगा मुझे लगता है सबको ही ब्लॉक करता होगा। मुझे नहीं किया अभी तक। जो भी है देख तूने इसके एंगेज नहीं किया होगा ना। मैं एंगेज मतलब हाँ मैं नहीं करता हूँ उसको, मैं उसको रीट्वीट ट्वीट नहीं करना। मैं तो पिक्चर फोटो देता हूँ। लड़ गया था यार एक बार, तो उसने ब्लॉक कर दिया। तेरे तो पर्सनल है ना, इट्स फैमिली फॉर यू, सो आई गेट दैट। हाँ मैंने भी वही कर दिया था, मेरे को भी। क्या भाई क्या काउस का क्या सीन है, मतलब कैसे? मेरा क्वेश्चन ऐसे जैसे नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे चाइना है बेसिकली, वहाँ की काउ का क्या कैटेगराइजेशन है, या लेट्स से मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान
अनऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, जैसे उन लोग आजाद, उसकी काउज मतलब कहाँ, मैं मतलब कहाँ की काउज अगर मैं लाइक इफ आई ट्राई टू कंज्यूम तो मैं ठीक रहूंगा। वो लाइन कहाँ है कि इसके उस तरफ की खा सकते हैं, और क्या यहाँ की वहां चली गई गलती से तो खा सकते हैं। देखो तुम जैसे तुम समुद्र क्रॉस कर लेते हो, जम्बू द्वीप से जैसे बाहर चले जाते हो तो वहां के बाद पर मैं तो बिना समुद्र क्रॉस के चाइना भी जा सकता हूँ ना, उसका क्या? हाँ तो तुम जम्बू द्वीप में तब भी नहीं हो ना, टेक्निकली जम्बू द्वीप का हिस्सा नहीं है चाइना। जम्बू द्वीप कहाँ पे? अब जम्बू द्वीप का बॉर्डर मुझे थोड़ा सा बता दे। जम्बू द्वीप का बॉर्डर है साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है। साउथ ईस्ट मतलब थाईलैंड में गाय नहीं खा सकते अपन? नहीं खा सकते हो, हिंदू हो तो थाईलैंड में नहीं खा सकते। हाँ हिंदू है ना भाई। वही तो हो रहा है ना थाईलैंड इंडोनेशिया वगैरह में, जो करप्शन जो हुआ है इंडोनेशिया में फॉर एग्जाम्पल, मुसलमान पहुंच गए वहां पे, कल्चर करप्ट कर दिया उन्होंने, खाने लगे। तो वो जज, और दूसरा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इज मुसलमान कोई भी खाई नहीं सकता है, तब वो एंटी नेशनल बन जाता है। हिंदू होके तुम इंडियन खा सकते हो, अफ्रीकन का खा सकते हो, कोई भी वेराइटी ले लो खा सकते हो, बट मुसलमान होके तुम कुछ नहीं खा सकते। मुसलमानों को तो अभी बात ही नहीं कर रहे, वो तो आउटसाइड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। जैसे तो पाकिस्तान का क्या सीन है? जो आज का मॉडर्न डे पाकिस्तान है, जम्बू द्वीप का पार्ट तो नहीं खा, वहां की गाय नहीं, वहां का गाय इंडियन है, लेकिन जब तक वहां की गाय नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम है और वहां की गाय हिंदू है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ तो वहां पे जब तक मुसलमान नहीं पहुंचे थे वहां पे लोग गाय नहीं खाते थे, तो उन्होंने फिर कन्वर्ट कर दिया, धर्म भ्रष्ट। गाय कन्वर्ट हो गई, गाय और इंसान दोनों। गाय कन्वर्ट हो गई, खुद ही आके कट जाती है खुद ही आके ट्रेन से भिड़ जाती है। बोलती है कि मैं जाऊंगी, मैं कंज्यूम होना चाहती हूँ, और दूसरा मैं बर्बाद होना चाहती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल उसके पीछे ये है ना कि जर्सी का जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल आ रहा है। दोस्तों साइंस हैज एंटर्ड द चैट। बोलो। जर्सी गाय जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है। इंडियन का वो जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करती है और ऑक्सीजन बाहर भी छोड़ती है। ये साइंस थोड़ा और इसमें, और कभी कभी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करके ऑक्सीजन छोड़ देती है बाहर, वो भी हो जाता है। नहीं, हमारी बात सुनिए आदित्य जी, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग समुद्र पार कर लिया हम लोग ने, और हम कहीं और रहने लगे, और तुम जर्सी को खाने लगे। नहीं, ये उंगली मुझ पे ना उठाई जाए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा। मैं नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि लेट्स से कि किसी गाय, कोई गाय नहीं, समझ लो कोई गाय है इंडिया में, उसका H1B लग जाता है और वो यूएस आ जाती है, फिर क्या सीन? अरे यार उस गाय से पूछना यार, अगर डेट मिल रही है तो स्टैंपिंग की डेट मिल गई है, H1 लग गया है, हाँ। तो फिर क्या? आज जिस रेट पे इंडिया के पासपोर्ट का इम्पैक्ट है दुनिया में, वो गाय भी जाती है बांग्लादेश स्टैंप लगवाने के लिए। जैसे आती है वो। जैसे मैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा पर्सनल ट्रेजेडी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आदित्य को इंडिया आना था स्टैंपिंग के लिए, उसको डेट नहीं मिली, तो ढाका या कोलंबो जाने की सोच रहा है। ये दिन दिखा दिए मोदी जी ने आदित्य को, इसीलिए बोला था सपोर्ट कर मोदी जी को शुरू से, बाधा नहीं। जयशंकर करता क्या है वैसे, जस्ट टू बी ऑन अ मोर सीरियस नोट? जयशंकर करता क्या है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। जयशंकर दूसरों को ऑनर करता है और खुद वाइन करता है, बस। और वही देसी लोग जो यहाँ बैठ के ताली बजा रहे हैं। नेपाल में गाय जाती है ढाका स्मगल होके, अब समझ रहे हो गाय स्मगल क्यों हो रही है ढाका तक? क्योंकि उसको H1B का स्टैंपिंग करवाना है। वैसे कभी तूने अपने लाइफ में किसी से एक ट्रेन जब फ्लैग हो रहा है पहली बार, तो तू गया है रेलवे स्टेशन में चिल्लाने के लिए भारत माता की जय ये करने के लिए? भाई ये चीज का क्रेडिट मैं मोदी जी को देना चाहूंगा। भाई वही ट्रेन है जो अभी उसके बाद किसी गोधरा गई थी। नहीं ये वो, लेकिन काम वैसे ही इस ट्रेन के, ये वही ट्रेन है ना जो मार रही है। कई सारी गौ माताओं को मारा है इन्होंने, और असली माताओं को भी मारा है अभी। ये गौ माता असली माता नहीं होती क्या? अरे यार सॉरी। मतलब ह्यूमन माता, गौ माता, ऑल माता। ये जुबैर ने जो ट्वीट किया वो वाला वीडियो देखा है तूने? अभी बहुत जल्दी से देख ले, मतलब तुझे इतना प्राउड फील होगा ना अपने देश के लिए। प्राउड तो अभी के अभी तो फ्लाइट टिकट बुक करेगा घर जाने के लिए। वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 भारत, वंदे 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 भारत, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 भारत, वंदे 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 भारत। लिसन टू ऑल द सटल नॉइसेस, ठीक है? एक अंकल भी चिल्ला रहा है। बोस के स्पीकर्स चाहिए इसके लिए। बोस के आइए ना।
भाई देखा मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तुझे लगता है कि 19th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में मतलब जब ट्रेन पहली बार लोग टेस्ट कर रहे थे, सबसे पहले जो बॉम्बे जो थाने की ट्रेन थी ना, जो उसमें उसके लिए भी लोगों ने नहीं किया। भाई बॉम्बे थाने की ट्रेन छोड़ दे, जो सबसे पहली ट्रेन रही होगी उसमें भी मतलब, लेकिन यही तो कहना चाह रहा हूँ कि क्रेडिट मैं मोदी जी को इस चीज को देना चाहूंगा कि हर चीज में प्राइड है आपके पास। मोदी जी गुजरात में क्या करने गए थे तुम्हें पता है ना? प्राइड मंथ सेलिब्रेट करेंगे क्या मोदी जी? प्राइड मंथ ऑफिशियली सेलिब्रेट करेंगे, वो नहीं करेंगे, उतना नहीं करेंगे, अलग तरीके का प्राइड है ये। हाँ, पर मोदी जी गुजरात में भी क्या करने गए तुम्हें पता है? मोदी जी गुजरात में गए पुल का वो करने ना, नहीं वो सब छोड़ो, कपराड़ा और भावनगर में मास वेडिंग सेरेमनी अटेंड की मोदी जी ने। पापानी परी। ओह राइट। तो और उसके बाद कर्नाटका जाके ये ट्रेन। बट इजंट इट वेरी एप्ट? मतलब देश के पापा हैं, हु बेटर टू ग्रेस सच एन ओकेजन देन मोदी जी? मैं सिर्फ वो कहूंगा जो राखी सावंत, इंसर्ट राखी सावंत कोट करूंगा मैं यहाँ पे। जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। मैं अपने तरीके से कर रहा हूं, लेकिन चूंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूं। किसी दिन अगर किसी बीजेपी वाले, किसी मिडिल से हाई लेवल के आदमी ने अगर अपना पॉडकास्ट सुन लिया ना, तो बहुत ऑफिशियल सैल्यूटेशन जो होता था, मतलब दैट यूज्ड टू बी लाइक साल मुबारक, ठीक है। मतलब वैसे सब गुजराती न्यू ईयर के लिए भी मतलब नववर्ष का मुबारक यूज करते हैं, ये सब पारसी न्यू ईयर के लिए भी मुबारक यूज होता है, मतलब ये सारा चीज। तो लॉट ऑफ गुजराती यूज कहाँ से आया हो? जेहान मुबारक श्रीलंकन क्रिकेटर के नाम पे थोड़ी ना रखा है उसने मुबारक। तो बट पीपल डोंट रियली, ये सारा चीज ना तू थोड़ा और एक लेवल पील करके फिर नीचे जाएगा तब समझेगा ना। तो से मुझे याद है, मतलब एक और चीज मैं देख रहा था कल आज तक, एज एनी क्रिकेट फैनेटिक वुड वॉच ऑन अ डे व्हेन इंडिया लूजेस, यू वॉच आज तक। The only day I watched it, by the way. नहीं तो क्या उन्होंने कहीं स्किप ही तो नहीं कर दिया कि मैच? नहीं, श्वेता सिंह ने होस्ट किया और श्वेता सिंह सीधे इसका मर्ज क्या है, ये सारा चीज, मतलब सीधा मैं बोला क्या हो क्या उर्दू की यूज कर रही है आज के दिन। तो पूरा शुरुआत का मोनोलॉग जो है ना श्वेता सिंह का, सब उर्दू में। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दो ही चरण हो सकते हैं। अव्वल ये कि आप जानते हैं कि नहीं दिक्कत क्या है, यानी मर्ज क्या है, और दूसरा अगर मर्ज आपको मालूम है तो सही दफा का इस्तेमाल किया जाए। ख़वातीन और हज़रात, हिंदुस्तान की टीम तो इसमें लगा देना सगीर की आखिरी टीम है। यहाँ से वो करना चाहता हूँ कि जैसे, क्योंकि आदित्य ने मेंशन किया कि पंडित गाय पाकिस्तान गई, जयशंकर पे भी आऊंगा, बट गाय पाकिस्तान गई, कन्वर्ट हो गई। इंडोनेशिया में भी गायों को कन्वर्ट किया गया, पर इंडोनेशिया में एक चीज हुई, वहां की जो करेंसी है, गणेश जी आ गए इस पे। हाँ, तो मुस्लिम डोमिनेट 98% मुस्लिम का या जो भी है, और उसके बाद भी गणेश जी हैं। वैसे फैक्ट चेक ये है कि गणेश जी अब नहीं है, बट लेट्स से एक सेकंड के लिए दिल में इंडोनेशिया के मुसलमानों के दिल में गणेश जी बसते। तो प्री एमिनेंट इकोनॉमिस्ट इंडिया के डॉक्टर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट अरविंद जी केजरीवाल, जी स्टैंड फॉर जीनियस, ने कहा कि जे स्टैंड फॉर जीनियस कि हमारी करेंसी में भी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी क्यों? सरस्वती जी क्या कर लेंगे करेंसी के साथ? नहीं, लक्ष्मी गणेश है। गांधी की क्या जरूरत? वैसे गांधी जी है ना, हटा नहीं सकते, तो उन्होंने बोला गांधी को एक तरफ। एट दिस पॉइंट अगर वो सरस्वती बोल भी देता तो it would have made the same amount of sense. हाँ, I mean, but Saraswati is not that much of a सरस्वती जी उतनी ग्लैमर वाली नहीं है, मतलब बेसिकली है टेक्निकली ये एक लाइन लेके ना अपन को ना कब अभी 10 साल इंडिया नहीं जा पाएंगे, सरस्वती जी ग्लैमर वाली नहीं है। अबे जाना कौन चाहता है? टेक्निकली इंडस्ट्री तो सरस्वती जी वाली ग्लैमर वाली है, मतलब पॉप एंड आर्ट्स एंड कल्चर। इन प्रिंसिपल तो सीधे फ्लाइट लेके एमिरेट से कोलंबो पहुंच, वहां स्टैम्प कर और वापस देखो, तो वो तो तू कनाडा जाके भी स्टैम्प करा सकता है, तेरे को वहां जाने की क्या जरूरत है? कनाडा जाने के लिए वीजा चाहिए, कनाडा का वीजा चाहिए ना। इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है नहीं ना इस साइड, थोड़ा सा वेस्ट। अरे सेशल्स जा बिंदास, और वहां जाके नमो नमो माता भी गा सकता हूँ, अभी तो मेरे को वो भी आता है, हर हफ्ते सुन रहा हूँ। नहीं देखो, to answer this Nishant's question, Saraswati Mata is like doing postdoc at Harvard, but Lakshmi ji has done MBA from Stanford and is working in finance. तो पैसा किसके पास ज्यादा है? कौन बिलोंग करता है? लेकिन इस लॉजिक के हिसाब से गणेश जी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। गणेश जी प्रॉस्पेरिटी के गॉड हैं यार। गणेश जी अपर कास्ट मेल है ना, क्यों करेंगे कुछ? अच्छा, गणेश जी जस्ट हैज टू बी देयर। या
I mean, And eat first. at some point, because at some point you have to talk about the elephant in the room. Exactly. सोच तू जैसे तू एयरपोर्ट में बैठा हुआ है, तू मिला किसी से इससे, उसने बोला कि ओह यू फ्रॉम इंडिया, शाहरुख खान, ओह यू नो शाहरुख खान, और व्हाट अदर मूवीज डू यू वॉच बेटा? फिर तो सोचना कि ये लोग जो बोल रहे हैं बॉलीवुड का, ये सब का जो सॉफ्ट पावर जो बोल रहा है जॉर्जिया आर्मीनिया वगैरह में सब भी पब्लिक मतलब कुछ भी रैंडम हिंदी मूवीज देखता है. बट नाउ यू टेल मी इफ एवरी बॉलीवुड मूवी इज लाइक वो अक्षय कुमार वाला पृथ्वीराज चौहान, या फिर वो अभी क्या बनाया था राम सेतु, तुम्हारा क्या सॉफ्ट पावर रहेगा? भाई राम सेतु मुझे लगा था लेकिन कितनी हिट होगी, और ये और कोई देखने ही नहीं गया राम सेतु भाई, वही आगे चली गई. एक तो दिवाली, इवन वो कोमल नाटा टाइप के लोगों ने भी ऐसा बोला कि मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कैरिकेचरिश. हमें देखनी पड़ेगी क्या मूवी पब्लिक को बताने के लिए? कुछ वैसा ट्विस्ट किया है क्या लास्ट मोमेंट में, राइट से आके लेफ्ट से निकल गए? नहीं, अरे राम सेतु अरे ये तो काबा है ऐसा. अरे वैसे अक्षय कुमार विल डू दैट, राइट से आके लेफ्ट से निकल गए. दिस इज लाइक जबलपुर के स्कूटर ड्राइवर, मोटर बाइकर. राइट से आके लेफ्ट से निकल गए. एक और चीज इससे याद आई मुझे कि मोदी जी की जान पे खतरा का न्यूज आ गया. तुम्हें पता है ना, गुजरात इलेक्शन की जस्ट पहले ऐसे इलेक्शन आता है मोदी जी को खतरा होता है. अभी तो देखो उस आदमी ने वहां पे पुल ऑफ किया, पड़ोसी ने, कप्तान साहब, स्किपर पैर पे गोली, मतलब इससे ज्यादा स्किपर को उससे ज्यादा ऑब्वियस बनाना नहीं था क्या? एलबीडब्ल्यू. अरे मतलब ये तो बेसिकली मुझे वो हिंदी फिल्मों की याद आ गई जहाँ पे वो अपने दोस्तों को पैसे थे, मतलब उसको छेड़ना फिर मैं तेरे को पीटूंगा वाला, वैसा वाला. तो मोदी जी में उतना भी नहीं है. मोदी जी में उतनी करेज नहीं है. मोदी जी बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने सुपारी दी है. नहीं, बट मोदी जी को क्या है कि मोदी जी का दो प्रॉब्लम है ना. एक खुद का ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि नो वन कैन टच मी, आई एम आयरन मैन वाला फील, तो वो भी रखना है कि मेरे आसपास का शील्ड नहीं ब्रीच हो सकता है, और दूसरे साइड में ये भी दिखाना है खतरा भी है. तो वो बीच, सो ही जस्ट एंगेजेस इन दिस वेरी वीक ट्रोप्स, लाइक किसी के लैपटॉप में एक लेटर लिख दिया कि वी वांट टू किल मोदी जी, ऐसे टाइप का. तो दैट इज व्हाट ही हैज, मतलब वो प्लांट करके कि ये प्लॉट टू, ये सारा इंटेलेक्चुअल्स को अंदर डाल के, मतलब मोदी जी उतना ही कर सकते. वो मैं ये कह रहा था कि अब तो वो असर भी नहीं पड़ता, अब तो वो बात भी नहीं रही मोदी जी के थ्रेट्स में. पब्लिक भी वैसे रिएक्ट नहीं करती. लाइक एक दिन भी न्यूज नहीं चली, पता है, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब गलवान से हाई वाज अ बिगर न्यूज देन मोदी जी पे अटैक्स. एंड पिछले, ये तो रही बात. और पिछले साल जब उस ट्रैफिक में फंस गए थे मोदी जी, दैट मेड बिगर न्यूज. पंजाब में आने दिए मेरे वो भी, लेकिन उसको भी टाइम हो गया है ना, उसको भी टाइम हो चुका है, 2-3 साल हो गए ना उसको भी. मोदी जी को कुछ नया करना पड़ा. मोदी जी को एक बार तो गोली लेनी पड़ेगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ. ये मैंने बोला ना, वरना ये सब बोल मत ये सब गोली, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पैरासिटामोल. बिकॉज शिव अरूर जैसे लोग कांट हैव मोदी जी इन अ बिकिनी ना, तो जनता भी नहीं दिखेगी. आई आल्सो डोंट वांट टू, लाइक प्लीज नहीं, इतना रहम करो. मोदी जी ने स्पीच में कहा कि मैंने I asked Congress to target terrorism, they started targeting me. तो मैंने बोला सही किया. एक ट्विटर पे थ्रेड देख रहा था, डिफरेंट कंट्री फुटबॉल फैंस एट द कतार वर्ल्ड कप रिफ्यूजिंग टू टॉक टू इजरायली मीडिया, अ थ्रेड. ये सब होता है दुनिया में. इंडियंस गए, इंडियंस क्यों जाएंगे भाई? जाएंगे बात करने के लिए ना. इंडियंस जाएंगे बात करने. Nobody is I talk brother, we oppress together. वो खैर एनीवे. आजकल तो लेकिन तो देख रहे हो, टीमिंग अप विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स वालों का. अभी रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास हो रहा था यूएन में सिविलियन एरियाज को बॉम्बिंग करने के खिलाफ, एयर स्ट्राइक्स और ऐसे. तो वो छोड़, 4 देश ने इंडियन, उसके अभी कल क्या हुआ, कल यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ कि जो एलिफेंट के जो टस्क होता है, आइवरी टस्क, उनका वो नहीं करेंगे. उसमें भी इंडिया ने वोट नहीं किया भाई, एब्सटेन कर दिया. क्या चल रहा है भाई? सुपर विलेन बनने चले हो आप. ये वाला तो मेरे को बहुत मसला है. ये तो सुपर विलेन वाली हरकत भी नहीं है, ये तो मतलब सामान्य नहीं हो तुम साले. वही है, क्योंकि वो वाला जो था, जो अभिजीत चावड़ा की यूनिवर्सिटी में बोलता हूँ, जो सिविलियन एरियाज में बॉम्ब करने के खिलाफ जो रेजोल्यूशन था, उसमें इंडिया, चाइना, रशिया और चौथा कौन था, यूएई था शायद से, और इजराइल, सॉरी, द फोर्थ कंट्री. ऑफ कोर्स इट हैज टू बी इजराइल, क्यों कोई और हो. मतलब देख रहे हो टीम, वहां पे अभिजीत चावड़ा बोलता है कि ब्रिक्स इतना पावरफुल होने वाला है. देयर आर मोर कंट्रीज व्हिच वांट टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स विल हैव इट्स ओन करेंसी. इनका अलग चल रहा है यूनिवर्स. ब्रिक्स का अलग करेंसी बनने वाला है. ऐसे ब्रिक्स में सी फॉर चाइना.
हाँ तो मतलब जो आई है और जो सी है, जो चाइना आता है मीटिंग में, जाता भी होगा, अपने किसी छोटे को भेज देता होगा, ब्रैक्स हो जाता होगा वो, बट ब्रिक्स में रहेगा अगर चाइना है ब्रिक्स में, लेकिन एक यूनिफाइंग फैक्टर तो है। और आर भी भूल मत जाओ, आर क्या है ब्रिक्स में, पता है ना? बट तू ब्रिक्स में एक यूनिफाइंग एलिमेंट देख रहा है, साउथ अफ्रीका टू एन एक्सटेंट, बट उसके अलावा बाकी सब में स्ट्रॉन्ग मैन तो है। पर बी भी अलग हो जाएगा बहुत से। बी अभी तो अलग हो गया, बी अब रिक्स रह जाएगा, कोई रिक्स नहीं लेगा, रिक्स नहीं लेने का। ऑन दैट नोट, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? बस हमारा सनातन धर्म अखंड भारत। महंगाई कुछ भी हो, महंगाई चलेगी, लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। से मांग क्या है? वो नेक्स्ट 2029 में हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, जरूर से बनेंगे। शाह जी नहीं बनेंगे। अमित शाह 2000 बीजेपी का होना चाहिए। सब लोग एक ही है, योगी जी बने, अमित शाह बने, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि 2029 में योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। योगी तो हमारा हृदय सम्राट योगी है, इसमें कहना नहीं है। वो हमारे गुजरात में आएगा, हमका हृदय पूर्वक स्वागत करेगा, और योगी है ना वो गुजरात का वो निकाल करेगा। योगी हमारा गुजरात हमारे सोना की मूर्त है, इसमें सभी लोग आते हैं। पेट्रोल फ्री में नहीं आता है, सरकारी गाड़ियाँ फ्री में चलती है, ये तानाशाही है, गुजरात में तानाशाही है, गुंडागर्दी हो रही है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।